ओके अस्सलाम वालेकुम। आज हम CompTIA A+ ट्रेनिंग का पार्ट नंबर 1 चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। पिछला चैप्टर हमने चैप्टर 6 जो कवर किया था उसके अंदर काफ़ी हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नाउ चैप्टर 7 के अंदर इट्स मोस्टली प्रोटोकॉल बेस्ड स्पोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगेन कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, सो आई कैन रिप्लाई टू यू राइट अवे। So let's begin. We are running a little bit late. We're running 15 minutes late. So let's see. Plan is to finish 2 chapters today, 7 and 8. But हम कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है? तो chapter 7 जो है is an introduction to TCP and IP. Okay. Let's just begin directly with the TCP IP. Okay. Now, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने expression दिया है what exactly it is. So let's just go over it. Okay. So networking protocols are not like human languages in that they are the language that computers speak when talking to each other. If computers don't speak the same language, they won't be able to talk. To complicate matters, there are dozens of different languages out there that computers can use. Just like humans, computer can understand that use multiple languages. So basically, computer की जो language होती है, in order for computer to understand, it needs to convert those languages. Now, जैसे human के अंदर भी अलग-अलग किस्म की language होती हैं, computer में भी होती है, C++, Java, PHP, so many languages. And if you imagine that you are on the street, right, and someone comes up to you and speaks up in English, if you know English, you will likely respond. It doesn't really matter if both of you know English as well, as because you are already established that you can communicate. Even though आपको English आती है, आपको पता है कि आप स्पेनिश में भी बात कर सकते हो. So basically ये लोग they're trying to explain it to you कि computer languages जो है बहुत सारी languages होती है, as I mentioned, but जिस language के अंदर हम coding करते हैं, computer can run the applications in that specific coding also, which they call it a proprietary protocol. Softwares in सब चीज़ों के ऊपर आपके languages के base के ऊपर ये programs और software run करते हैं. So Java के program होते हैं, जैसे Oracle के होते हैं, Windows and Linux, they all can run those applications on through different languages. So let's just dive into the TCP protocol. Okay, what is TCP protocol? As we mentioned in the introduction, right? Computers use a protocol as a common language for communication. A protocol is a set of rules that govern communications, much like a language in human terms. Of the myriad protocols out there, the key ones to understand are the protocols in the TCP IP suite, which is a collection of different protocols that work together to deliver connectivity. जो TCP IP protocols होते हैं ना, are the protocols which runs through the network. हम जब भी कोई पैकेट सेंड करते हैं, it goes through a TCP IP connection or UDP connection. UDP का जिक्र इन्होंने भी नहीं किया है, आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह. But right now they're talking about TCP. TCP जो है, these based on this they're saying that this is most likely going to come into your exam as well. Okay, TCP, transmission control protocol or internet protocol, which is IP suite, is the most popular network protocol in use today, mostly to rise of the internet. इस TCP के ऊपर ही पूरा इंटरनेट अब चल रहा है आजकल. This is the main protocol. While the protocol suite is named after two its hardest working protocol, transmission control protocol, which is TCP, and IP, actually contains dozens of protocols working together to help computers communicate with one another. ये TCP जो है ना, इसके अंदर obviously बहुत सारे protocols रन करते हैं. FTP के protocols होते हैं, SFTP के protocols, मेल डिलीवरी के प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, RDP के प्रोटोकॉल्स होते हैं. We will learn more when we go down, right?
TCP/IP is robust and flexible. So for example, if you want to ensure that the packets are delivered from one computer to another, TCP/IP can do that. If speed is more important than guaranteed delivery, then TCP can ensure that too. The protocol can work on disparate operating systems such as Unix, Mac, Windows and iOS and Android. TCP basically सब चीज में ही काम करता है. As long as you have networking, TCP is there. यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि if you are looking for a speed, a guaranteed delivery, TCP will confirm that. जैसे हमने I think ऊपर पढ़ा था, TCP का जो काम है वो पैकेट सेंड करता है और वो एक्नॉलेज के लिए वेट करता है बिफोर इट कनेक्ट्स टू डिवाइसेस. जैसे TCP एक बंदा है, बंदा नंबर ए, वो एक दूसरे बंदे को बोलेगा हेलो. बंदा नंबर बी जो है, जब तक से वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये TCP खड़ा रहेगा इंतजार में. UDP ऑन द अदर एंड, उसमें भी दो बंदे हैं, बंदा ए, बंदा बी. बंदा ए, if he says hello to person number B, whether person number B respond करता है कि नहीं करता, वो जो A जो है person UDP का, वो चला जाएगा, बस hello बोल के वो चला जाएगा. It doesn't care if the person responds or not. So what I'm trying to explain is TCP जो है always waits for a confirmation, an acknowledgement. UDP does not. जैसे कि हमने OSI 7 layers के अंदर पढ़ा, networking fundamentals. Every protocol that created needs to accomplish the task. अभी मैंने जैसे बताया, उसका वो एक ना वही टास्क होता है. जैसे TCP का टास्क ये है, और DoD, Department of Defense, is the one they came up with this model. Okay, so there's one is the OSI model and there's the DoD model. OSI मॉडल को इन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने पार्टीशंस किए हुए हैं. इफ यू लेट्स गो फ्रॉम बॉटम अप. OSI मॉडल के अंदर डेटा लिंक एंड फिजिकल लिंक इज फर्स्ट लेयर, डेटा लिंक इज सेकंड लेयर. पर DoD मॉडल में दे हैव क्रिएटेड ए वन लेयर कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस लेयर. सेम विद DoD मॉडल, दे आर कॉलिंग इट इंटरनेट फॉर द थर्ड लेयर, वेयर नेटवर्क on the OSI model जो है वो थर्ड लेयर है. वैसे ही फोर्थ लेयर, होस्ट टू होस्ट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट DoD मॉडल इज लिटिल बिट इजियर टू अंडरस्टैंड अगर आप लॉजिकल उससे देखें तो. होस्ट टू होस्ट is a layer 4 connection, 1 2 3 4, right, which falls under transport on OSI. Now 5 6 7 जो कि OSI मॉडल के अंदर था, लेयर सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, वो DoD मॉडल के अंदर becomes one basically kind of like a one layer, so that they call it process and application. The overall functionality between these two models is virtually identical. वो दोनों सेम ही है. The layers have just different names. Layers के उन्होंने नाम अलग किए हैं, उसका काम सेम ही है. So for example, the process and application layer of the DoD model is designed to combine the functionality of the top 3 layer of the OSI model. जैसे मैंने बताया, ये 3 layers जो हैं OSI मॉडल की, DoD मॉडल ने उन्होंने उसको एक ही लेयर के अंदर कंबाइन कर दिया है. तो टेक्निकली DoD मॉडल के अंदर कितनी लेयर है? 1 2 3 4 लेयर है, whereas OSI के अंदर 7 लेयर है. Concept is the same, they have just combined the layers. Okay. Therefore, any protocol designed against the process application layer would need to be able to perform all the functions associated with the application, presentation and session layers in the OSI model. जब तक से ये requirements meet नहीं होगी, आपकी application जो है वो चलेगी नहीं. Now they're further breaking down. We're going to start from the bottom up. DoD model के अंदर network access के अंदर basically it's a packet, for example they're sending. उसमें क्या क्या है? Ethernet, या क्या होगा, हो गया physical connection. Fast Ethernet is a NIC जो होता है ना अपना NIC, वो token ring and FDDI. These are all protocols in network access layer. DoD के अंदर जो second layer है internet, ICMP is a ping protocol.
ARP is a basically it's the IP remembrance, it's ARP table type information. Further मैं explain करूँगा when we come to routing. ये routing अंदर आएगा. And all of these they fall under IP. Host to host is either TCP or UDP. TCP confirm करता है, acknowledgement के लिए, response के लिए इंतजार करता है. UDP does not do that. Last process जो DoD मॉडल में है, इन्होंने सारा कंबाइन किया हुआ है, are these protocols. Telnet, FTP, SMTP, NFS, LPD, HTTP. ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जिसके ऊपर नेटवर्किंग काम कर सकती है. मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल सबने सुना होगा, HTTP is a very common protocol. FTP भी बहुत कॉमन है. Telnet तो we try not to use this anymore, but SMTP is pretty common as well. Okay, NFS as well. So the majority of TCP/IP protocols are located at a process or application layer, which is the 7th layer in OSI model. These include some protocols with which you may already be familiar. HTTP, which is called Hypertext Transfer Protocol. FTP is File Transfer Protocol. SMTP जैसे मैंने अभी बात की ऊपर. At the host-to-host layer, there are only two protocols, TCP and UDP. ये भी मैंने बताया. Host level के ऊपर दो ही प्रोटोकॉल है because these protocols send the data. The most important protocol at the internet layer is IP. This is the backbone of TCP/IP. Other protocols at this layer work in conjunction with IP, such as ICMP, which is the Internet Control Message Protocol, also known as PING, and Address Resolution Protocol, which is called ARP. ये IP की अगर IP ना हो तो ये सारी चीजें काम ही नहीं करेंगी. IP is the most critical backbone of any internet layer. So you'll notice that the network access layer does not have any protocol as such. This layer describes the type of network access methods that are using, such as Ethernet and Wi-Fi or others. So yeah, that's fine. Okay. Process application layers and protocols. As we mentioned in the previous section, most of the protocols within the TCP/IP suite are the process application, which is a 7th layer application. This is the one of the protocol which has 4 layers built into it. This is the layer of differentiation and flexibility. For example, if you want to browse in an internet, the HTTP protocol is designed for that. तो थोड़ा explanation दे रहे हैं ये लोग कि अगर आपको application layer के ऊपर कुछ browse करना है तो आप you will go use HTTP. अब HTTPS are mostly used. S stands for security. HTTP is not used anymore, but either way the concept is the same. अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी होती है तो you will use FTP, or in today's world you will use SFTP, Secure File Transfer Protocol. And if you want to remote desktop into some computer, which is also called remote desktop protocol, RDP is used for that on port 3389. So now before we get into more protocols, let's take a quick look into a few key points of the TCP/IP suite flexibility. There are literally dozens of protocols at the process and application layer, and they have been created over time as networking needs arose. Take HTTP for example. The first official version of HTTP was developed in 1991, 20 साल पहले. And going one step further, they needed to secure transmission, hence the creation of HTTPS. So 94 के अंदर HTTPS आ गया, which is a same HTTP protocol, but it's a secure layer protocol. AFP, the Apple Filing Protocol, was developed in 1980s for use with AppleTalk Network Protocol. AppleTalk was a proprietary networking protocol developed by Apple to use on Macintosh computer. AFP is a file transfer protocol, जैसे FTP है file transfer protocol, right? वैसे ये AFP, which is called Apple Filing Protocol, or Apple ADP, Apple Transfer Protocol, you can say that similar thing, but the AFP is usually used on Macintosh and probably on iOS as well.
So it was the default file transfer protocol on Mac until Apple changed to SMB2 in 2013. SMB stands for Simple Mail. Hold on, I don't remember the name, but it's a file transfer protocol which you usually use to share file between the folders. Folder to folder file share karni ho, you use the SMB protocol. Converting to the industry standards, SMB protocol helped enhance interoperability between Macs and PCs. SMB will be discussed later in the chapter. हम आगे जाके इसको और discuss करेंगे. CIFS, Common Internet File Systems, is a Microsoft developed enhancement of the SMB protocol, which was also developed by Microsoft. The intent behind CIFS is that it can be used to share files and printers between computers regardless of the operating system that they run. It's been the default file and print sharing protocol on Windows based since 2000. Windows 2000. CIF जो है, with this you can use file sharing on Windows. You can use it for printer sharing as well. But इसके आगे अभी और secure protocol आ गया है. Which you use for file sharing is SMB version 3. Maybe Nietzsche they will talk about that. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, also known as DHCP. The whole purpose of the DHCP is to dynamically assign an IP to a device in your network. So if you have a router, your router will have or may have a DHCP turned on. Every time उस राउटर से कोई भी डिवाइस आपका सेल फोन या कोई आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो राउटर ये DHCP के थ्रू आपके उस नए डिवाइस को IP देगा. सो DHCP का काम ये है, IP देना. सर्वर के ऊपर भी रन होती है DHCP, राउटर में भी रन होती है, firewall, wherever. But that's the main purpose of DHCP. DNS, it's called Domain Name System. This is everyday, whether you realize it or not. It's used pretty much every day. जब हम google.com टाइप करते हैं हमें ये नहीं पता चलता कि Google की एक्चुअल IP क्या है. google.com itself is a DNS. DNS का नेम है, DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम. बिकॉज हम सब वेबसाइट्स की या सब सर्वर्स की हम IP याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने DNS को इजाद किया. DNS जो है वो लिंक होता है IP से. फॉर एग्जांपल मैं यूएस में बैठ के अगर मुझे गूगल पे जाना है तो मैं टाइप करूंगा google.com. फिर गूगल डिसाइड करेगा उनके सर्वर नियर बाय कि मैं कौन से सर्वर के ऊपर कनेक्ट हूँ और कौन सा सर्वर मेरे न्यू जर्सी से फॉर एग्जांपल नज़दीक में है. सबसे नज़दीक सर्वर न्यूयॉर्क में होगा तो वो मुझे न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क कनेक्ट कर देगा. इट्स DNS के बेस पे. लेकिन अगर मैं google.com पाकिस्तान से टाइप करूंगा तो पाकिस्तान से वो मुझे भेजेगा, जो भी पाकिस्तान के नज़दीक वाला सर्वर होगा वहां पे वो मुझे गूगल में भेजेगा. अब इसमें DNS क्यों इन्वॉल्व है मैं बताता हूँ. क्योंकि DNS के पीछे छुपी हुई होती है IP. अगर मैं US से उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो वो मुझे IP पे भेजेगा. फॉर एग्जांपल IP 1234 फॉर एग्जांपल ना, वो IP होगी लेट्स से 1234 US से. पर अगर मैं वही गूगल पाकिस्तान से एक्सेस करूंगा तो शायद उसकी जो IP होगी वो 1234 नहीं होगी, उसकी IP होगी 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा कुछ होगी IP. उसकी IP अलग होगी. तो बिकॉज हम एज अ ह्यूमन कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी IP, दिस इज द रीजन व्हाई ये DNS इजाद हुआ. मेक्स लाइफ होल लॉट इजियर. आपको सिर्फ डोमेन आपको याद रखने का एंड यू आर गुड टू गो. इसके अंदर DNS के अंदर देयर इज सो मच टू डू. जब हम नेटवर्किंग में आएंगे ना यू विल नो मोर अबाउट इट. FTP. FTP is optimized to do what it says to do. Transfer files. This includes both uploading and downloading files from one host to another. FTP is both a protocol and an application.
Specifically, FTP lets you copy files, list and manipulate directories, and view file contents. You can't use it to execute applications remotely. Okay. FTP simple cheese hai. It's nothing. Basically, you use FTP to transfer file protocol, the files from one computer to another, or from one server to another computer, or one cloud-based application to your any cloud-based application. Basically, file transfer आपको जब भी करना हो ना, you can use FTP. Secure FTP is way more preferred in that case. Here they're talking about this जो domain दिया हुआ है इन्होंने, FTP:// username and all that. This is where your DNS comes handy. So you have two options here. अगर हमें FTP पे connect होना है, let's see if we can quickly show you that. There are so many ways to do FTP. Okay, we can do. I need to find some FTP open server somewhere. मुझे किसी की IP चाहिए. Let's see. We can probably go to gnu.org. Let's try. ये focus नहीं हो रहा, right? I think it's out of focus. Let me see. Okay. All right. Yeah, let's see if we can go to gnu.org. FTP में क्या है ना कि अगर वो सर्वर वहाँ पे सुन रहा है, it will let us in, then we can get in, otherwise we won't. While this is trying, I can open up another session and we can try on that as well. FTP. There we go. Connected. मैं इसकी राइटिंग बड़ी करता हूँ ताकि दिखे. ये वाला सर्वर कनेक्ट हो गया है. तो देखें, मैंने FTP किया .vim.org. मुझे नहीं आइडिया ये कहाँ की वेबसाइट है. Something to do with Netherlands, it seems like it. Connected, as you can see right here, connected to FTP. You may log in as FTP or anonymous. So in the FTP server open hai. It's asking for a user, which I do not have any user account for them, but this is FTP. So if you have an FTP server, this is how you can connect. That's one way to connect. And then you can, once you're in it, you can start the file transfer. Another way to do that is, let me see if I have. ये एक फाइल्स लाइट्स ऑफ FTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है, आप यूज कर सकते हैं. वो Vim. The only problem is I do not have username, so no, this will not work. I will have to come back to that because I do not have username and password. Command line में क्या है कि you can bypass lot of things, and ये command line में ही जो command prompt है, it's called command line. इसी के अंदर काफ़ी hacking भी काफ़ी हो सकती है.
और जब हम पेन टेस्टिंग पे आएंगे ना, आई विल शो यू हाउ वी कैन इवन डू अ ब्रूट फोर्स अटैक ऑन दिस FTP ओपन सर्वर, ठीक है ना. सो लेट्स एग्जिट फ्रॉम हियर, क्विट. So in a very short form, this is basically FTP and how you can connect to the FTP server. Okay, अगर आपके पास username and password है, आप you can type that in and quickly get in. ये HTTP के तो हमने अभी कवर कर दिया है already. HTTPS to encrypt traffic between a web server and a client securely. HTTPS, which is HTTP secure, can be used. HTTPS connections are secured using either SSL, which is called Secure Socket Layer, or TLS, called Transport Layer Security. SSL जो है is a certificate based security. TLS जो है it's usually a browser based and a server based security. इसके अंदर मैं आगे जाके और इंशाल्लाह कवर करूँगा. बट जस्ट बस ये जान लें कि जो आजकल की जो रिसेंट वेबसाइट्स है, they use pretty much both. SSL उनकी सर्टिफिकेट भी होती है and then they also forced you to use TLS 1.2 and above or 1.1 and above. We will cover that more in networking class. So from the client side, the most common issue that you will encounter when HTTPS is in use on a website is that users may not know the proper contacts. To access most websites, you use HTTP in the address bar. To get to a site using HTTPS, you need to use HTTPS. यहाँ पे लोग बोल रहे हैं usually people are very common to use HTTP. अगर आपको HTTPS पे जाना है, so you have to type that in. But that's not 100% true, because even though मैं अगर HTTP टाइप करता हूँ, let's say हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, let's see http://loyaltechsecurity.com. let's see क्या होता है. मैंने HTTP टाइप किया था और आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली HTTPS पे आ गया. मैंने HTTP टाइप किया था, S पे आ गया. बिकॉज क्यों आया S पे? बिकॉज पीछे हम लोगों ने ऐसी सेटिंग रखी हुई है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू द सेम थिंग. सेटिंग्स रखी हुई है कि अगर कोई HTTP भी टाइप करे, फोर्स देम एंड कन्वर्ट देम टू HTTPS, ताकि हमारी वेबसाइट सिक्योर रहे. कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, they know that this is a secure website and उनकी कोई चीज हैक नहीं हो सकती है. Okay, so that's the purpose. But so in सब every website you can go any website with the no not every website only. अच्छा, क्वेश्चन भाई का ये है कि क्या एवरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली HTTPS पे कन्वर्ट होती है कि नहीं, राइट? ये क्वेश्चन आपका, राइट? तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता है. काफ़ी वेबसाइट्स आप दिखेंगी, स्पेशली जो जिनको सिक्योरिटी का ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनकी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स HTTP पे ही चलेगी. उसमें क्या होता है कि HTTP के अंदर अगर आप कुछ भी वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ परचेज करते हैं, कुछ आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेज किया उस HTTP वेबसाइट से, वो जितना भी डेटा आप डाल रहे हैं ना उस वेबसाइट के अंदर, वो कोई भी रीड कर सकता है. मैं अगर उसी नेटवर्क पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपके सारे डेटा को स्कैन कर रहा हूँ, तो आप जो भी टाइप कर रहे हो उस वेबसाइट के ऊपर मैं देख सकता हूँ. पर HTTPS के अंदर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो जितना भी ट्रैफिक ट्रांसमिट होता है वो सिक्योर SSL या TLS के ऊपर होता है, तो वो इनक्रिप्टेड होता है ट्रैफिक. ओके. Occasionally, you might visit a website that uses HTTPS and get a pop-up error message saying that the certificate has expired or could not be validated. This is most likely a case of a certificate legitimacy expiring, but it could be that it's a Trojan horse website. Excuse me. Proceed with caution.
सो यहाँ पे मैं आपको एक सी एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली बोल रहे हैं कभी कभी आप HTTPS के ऊपर जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट आती है, बोलता है कि भाई यू नो दिस सर्टिफिकेट इज एक्सपायर्ड, आपको ऐसे बोलता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्विकली, लेट्स सी T1। ओके, देखिए मैं टाइप करूँगा HTTPS, सही है। फिर मैं ऐसे मेरी अंदरूनी IP टाइप कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू, दिस इज नॉट गोइंग पब्लिक, बट देखिए मैं टाइप करूँगा ये देख रहे हैं आप, ये आपको एरर दे रहा है, बोल रहा है कि भाई ये कनेक्शन सिक्योर नहीं है, मेक श्योर इस पे आपको जाना है कि नहीं। ठीक है, अब ये मेरा इंटरनल सर्वर है तो मुझे तो पता है ये सिक्योर है, आई नो दैट, बट इसको नहीं पता। इसको नहीं पता इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये देख रहे हैं लिखा हुआ योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। सो इफ यू क्लिक ऑन दैट you should be able to see a certificate. हाँ, but I'm looking for the name actually. Let me see, hold on. Actually मैं इसमें edge में इतना काम नहीं किया है ना, so I don't know. Let me go on to Google. I think Google is a little bit better. एडवांस नहीं, वो तो मुझे आगे जाने का बोलेगा। हाँ, एडवांस में हम जाएंगे, मुझे सर्टिफिकेट देखनी है। सर्टिफिकेट बड़ा जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं दिखा रहा। हाँ देखिए भाई, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट की लोग बेसिकली इंफॉर्मेशन VMware दे रहे हैं, ये उसकी कोई कॉमन नेम की है। एक्सप्रेशन तो देखें, मेरी एक्सप्रेशन 2034 को है, विच मीन्स इट्स नॉट एक्सपायर्ड, बट ये फिर भी मुझे एरर दे रहा है। उसकी इंक्रिप्शन की भी अच्छी है, एवरीथिंग इज फाइन। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज बिकॉज ये जो ब्राउजर होते हैं ना अपने फायरफॉक्स, गूगल वेब, एज, ये फायरफॉक्स के अंदर ये वाली सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि excuse me, certificate registration, एक सेकेंड, SSL certificate registration, there we go। जैसे GoDaddy वाले हैं और एक दूसरा भी है, रैपिड करके आता है, बट लेट्स सी, डिजिटल जो है ना, डिजीसर्ट कॉमन है बहुत। तो इसमें बेसिकली आप जाके आपको बाय करनी पड़ती है। ओके, सो ऑल यू डू इज यू बाय अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देम, ठीक है, और देन यू कम, आप यहाँ पे आके अपने ये एक मशीन है, ये एक सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर जाके वो वाली सर्टिफिकेट को पेस्ट कर देने की। तो बेसिकली करेगा क्या, ये जो ब्राउजर है ना, जो भी ब्राउजर, जब भी हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं, ये ब्राउजर इंटरनेट में चेक करता है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट मुझे बंदा दिखा रहा है, क्या ये सर्टिफिकेट डिजीसर्ट में या इनके डेटाबेस में, क्लाउडफेयर में, जितने भी जो सर्टिफिकेट होल्डर वेबसाइट्स है ना, क्या उसमें ये रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर आपको ये वाला एरर नहीं देगा, ठीक है। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, पैसे देके। दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको व्यू सर्टिफिकेट में जाके इस सर्टिफिकेट को आप अपने इसके अंदर ऐड कर सकते हो। देखो डाउनलोड लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर रहे हैं, मैं नहीं करता अभी, बट डाउनलोड करके इसको आप रन करेंगे ना, तो यही सर्टिफिकेट आपके ब्राउजर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे इसी ब्राउजर IP पे, तो वो आपको ये एरर नहीं देगा, ठीक है। अभी हम करते हैं, लेट्स क्लोज दिस एंड तो अभी जो ये एरर आ रहा है, मुझे पता है ये मेरा सर्वर है, अगर आपको नहीं पता किसका सर्वर है तो नहीं जानेगा, एंड देन आई कैन जस्ट कंटिन्यू एंड विल जस्ट सेंड मी टू दैट सर्वर, ठीक है ना। सो देयर वी गो, वी आर रेडी।
IMAP, Internet Message Access Protocol, is a secure protocol designed to download emails. Its current version is version 4 or IMAP 4. It is the client-side email management protocol of choice, having replaced the unsecure POP3. पहले POP3 के ऊपर incoming messages आते थे. Now IMAP version 4 is mostly being used to receive, ये बोले ना डाउनलोड ईमेल का मतलब रिसीव ईमेल. हमारे जो इनबॉक्स में ईमेल आती है ना वो इस प्रोटोकॉल के ऊपर आती है. IMAP वर्जन अलग अलग होते हैं उसके बाद 4 is अभी यहाँ पे लोग बता रहे हैं. So most current email clients such as Microsoft Outlook and Gmail are configured to be able to use either IMAP 4 और POP3. ठीक है, आप दोनों के ऊपर उसको Gmail को, Outlook को, Yahoo जो भी है आपका होस्टिंग, लोयल टेक सिक्योरिटी से अगर आपके पास ईमेल है यू कैन, आप इस दोनों पे सेट कर सकते हैं. IMAP 4 has some definitive advantages over POP3. First, IMAP 4 works in connected and disconnected modes. With POP3, the client makes a connection to the email server, downloads the email, and then terminates the connection. IMAP 4 allows the client to remain connected to the email server after the download, meaning that as soon as another email enters the inbox, IMAP 4 notifies the email client, which can then be downloaded. Second, it also lets you store the email on the server as opposed to POP3, which requires you to download it. ये IMAP जो है ना बेसिकली वो जब सर्वर से एक बार कनेक्ट होता है तो वो फिर मैसेजेस रिसीव करने के बाद वो डिस्कनेक्ट नहीं कर देता है, वो फिर भी कनेक्टेड रहता है, ताकि अगर कोई दूसरा एक और ईमेल अगर आपको आती है तो वो उसी वक्त आपको ईमेल आपके क्लाइंट के ऊपर भेज देता है. इसका मतलब क्या है बेसिकली, जैसे हम जीमेल में जाते हैं gmail.com, ठीक है ना, तो gmail.com की ईमेल हम ब्राउजर पे देखते हैं. फॉर इंस्टेंस हम gmail.com पे गए तो हम जो भी ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पे हमें ईमेल दिख जाएगी. फिर जितनी भी ईमेल दिख रही है वो तो दिख रही है, लेकिन अभी कोई न्यू ईमेल आएगी तो वो भी आपको दिख जाएगी, वो पॉपअप आएगा. ठीक है ना, चलें वो समझ आ गया. ये तो हो गया, ये ऑनलाइन वर्जन है, इसको बोलते हैं OWA, लाइक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन और वेब एक्सेस. ये ऑनलाइन वर्जन. अभी इसी जीमेल को आप चाहो कि भाई मुझे बार बार ऑनलाइन जाके नहीं देखना है, मुझे सॉफ्टवेयर के ऊपर देखना है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का सॉफ्टवेयर है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं जीमेल से भी. तो उसके अंदर वो उसको सारी ईमेल्स ऑनलाइन सर्वर से डाउनलोड करनी पड़ती है. सर्वर किसका, जीमेल का या जिसका भी आप यूज कर रहे हो. तो अगर POP3 आप यूज करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है वो सर्वर से कनेक्ट होती है, डाउनलोड करती है ईमेल एंड देन डिसकनेक्ट हो जाती है, और वो आपको मैन्युअली उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा. वेयर एज IMAP 4 वो नहीं करना पड़ेगा, वो जैसी नई ईमेल आएगी इट विल शो यू. LDAP, also known as Lightweight Directory Access Protocol, is a directory service protocol based on the X500 standard. LDAP is designed to access information stored in an information directory, typically known as an LDAP directory or LDAP database. On your network, you probably have a lot of information such as employee phone books, email address, client contact list, and infrastructure and configuration data for the network and network application. This information might not get updated frequently, but you might need to access it from anywhere on the network, or you might have a network application that needs access to this data. LDAP क्या है? Lightweight Directory Access Protocol. Most of the companies के अंदर ये Active Directory के प्रोटोकॉल यूज होता है. ये LDAP के अंदर हम जब ये बेसिकली हम सर्वर के ऊपर यूज करते हैं, इसके अंदर यूजर बनाते हैं. Let me give you a quick example if I can. I think देखने से ज़्यादा बेहतर रहता है. लोड हो रहा है, एक सेकेंड. चलें जी, हम जाएंगे इस सर्वर के ऊपर.
देखिए भाई, ये है एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक्टिव डायरेक्टरी जो है ये LDAP के उसके ऊपर ही प्रोटोकॉल पे यूज होती है। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस इंफॉर्मेशन। जैसे मैं अगर नया यूजर बनाता हूँ इसके ऊपर, तो इसके अंदर देखें ये नाम है, हमें नाम की फील्ड है, हम नाम की फील्ड डाल सकते हैं, लॉगिन नेम जॉन डो, नेक्स्ट कोई भी पासवर्ड देते हैं, test123, नेक्स्ट फिनिश। Okay, password requirements does not match because password needs to be a little bit more complicated because of the rules. So let's just make a little better password. ठीक है, अब जब ये यूजर बन जाता है इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आप डालते हैं। कंपनी को जानना होता है ये बंदे का टाइटल क्या है, नेटवर्क इंजीनियर। ओके, कौन सी ऑफिस में काम करता है, IT टीम। ठीक है, टेलीफोन नंबर क्या है इसका, कुछ भी ना डाल दिया। उसका ईमेल क्या है, jdo@test.com, जो भी उसका ईमेल है। ठीक है, तो ये जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं इसका बनता है डेटाबेस। ये LDAP स्टोर करता है, पुल करता है, और इसी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर आप अलग अलग अकाउंट क्रिएट करके डोमेन पे कनेक्ट हो सकते हैं। वो हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे, बट आप ये बस समझ जाएं कि ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या है और LDAP प्रोटोकॉल किस चीज के लिए यूज होता है, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, you can also use ACLs to set up who can read and change entries in the database using LDAP। इसके अंदर आप है ना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी यूज कर सकते हैं LDAP के ऊपर, यूजर बेस्ड एक्सेस लिस्ट कि ये यूजर को HR डॉक्यूमेंट का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये यूजर को फाइनेंस के डॉक्यूमेंट का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये उसका भी पर्पस आप ACL डाल के कर सकते हैं। POP3, for a long time Post Office Protocol 3 had been the preferred protocol for downloading email. It's been replaced by IMAP 4, जैसे अभी ऊपर हमने बात की। RDP is a remote desktop protocol। ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ प्रोटोकॉल है। Allows users to connect to remote computers and run programs on them। RDP जो है as simple as आ गया मेरा माउस, ये रहा, ये RDP है। ओके, आई मीन ये RDP कनेक्शन की एप्लीकेशन लेयर है जो हम देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन है। RDP जो पीछे जो लिखा हुआ है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, वो ऐसा प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इस प्रोटोकॉल के ऊपर ये चलता है। और हमें करना क्या होता है, अभी लेट्स सी कौन से सर्वर हम रन कर सकते हैं क्विकली। वो IP मुझे याद नहीं रहती है। ओके, मेरे पास अभी इसका एक्सेस नहीं है, बट व्हाट यू डू हियर इज यू जस्ट टाइप इन रिमोट डेस्कटॉप के अंदर, किसी दूसरे कंप्यूटर में या सर्वर में आपको जाना हो तो आप टाइप कर सकते हैं, लेट्स सी 10.0.20359, आई थिंक दैट्स द राइट सर्वर, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, देख रहा है, अभी इससे आस्किंग मी फॉर द प्रोटोकॉल यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप डाल दो पासवर्ड। रिमेंबर, मैं ये रिमोटली कुछ चीज एक्सेस कर रहा हूँ, ओके, बट ये सेम मेरे नेटवर्क में ही है। ये ट्रस्ट का यहाँ पे भी दे रहा है बिकॉज सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताया था। आई कैन जस्ट गो इन एंड देन यू विल सी इट ब्रिंग्स मी टू दैट सेम सर्वर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये रहा जो हम अभी देख रहे थे ना, वो हमने पहले कोई और तरीके से एक्सेस किया था, अब हमने जो एक्सेस किया है ये RDP प्रोटोकॉल के ओवर एक्सेस किया है इसको, ठीक है ना। तो दिस इज RDP प्रोटोकॉल, क्लोज दैट।
So when you use RDP, the computer at which you are seated is the client and the computer you are logging into is a server. हम जहां से उसको एक्सेस कर रहे हैं वो है क्लाइंट. तो बेसिकली मैंने यहाँ से जहाँ पे PDF खुला हुआ है ये वाला, यहाँ से मैंने इसको एक्सेस किया तो ये है क्लाइंट. जिस चीज को मैंने एक्सेस किया वो थी जो IP जिस सर्वर के ऊपर हम गए उसको हम बोलते हैं सर्वर. जहां से आप कनेक्ट होते हैं उसको क्लाइंट बोलते हैं, जहां पे आप जा रहे हैं उसको सर्वर बोलते हैं. ठीक है. तो कन्वर्सली ऑल कीबोर्ड एंड माउस इनपुट जो है फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर आर इंक्रिप्टेड बिकॉज वो सर्टिफिकेट जो मैंने बताई थी ये कनेक्शन उस सर्टिफिकेट के थ्रू जाता है. तो कनेक्शन जितना भी आप RDP पे कर रहे हैं वो कनेक्शन सिक्योर होता है. लेकिन मैं ये एक बात ब्रॉट अप कर दूं, RDP प्रोटोकॉल इटसेल्फ इज नॉट सिक्योर. ठीक है ना, बस ये याद रखिएगा. RDP प्रोटोकॉल इटसेल्फ जो कि 3389 के ऊपर चलता है, ये उसका पोर्ट नंबर है, दैट इज नॉट सिक्योर. यू कैन क्रैक दैट. बट जो कन्वर्सेशन होती है ना क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, वो कन्वर्सेशन वो जो SSL की सर्टिफिकेट होती है उस बेस के ऊपर वो सिक्योर होती है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर. SFTP इज अ सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये चलता है पोर्ट नंबर 22 पे. हम आगे जाके देखेंगे, शायद SSH के बारे में ये लोग बताएंगे. SSH भी पोर्ट 22 पे चलता है. व्हाट्स द आइडिया? अब SFTP is used more than FTP because FTP के अंदर हम अगर कुछ भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो ना तो you can see that. जैसे let me see if I have the IP for the other one. 10 मुझे I'm not sure इस पे FTP काम करेगा कि नहीं because मुझे याद नहीं है कि मैंने FTP का प्रोटोकॉल ऑन किया है कि नहीं. बट let's see. Port is 22. So that may not work. Connection refused. हाँ, so excuse me, connection FTP का सर्वर नहीं चल रहा. बट ये बताना, देखिए SFTP खुद ही लिखा हुआ आ गया पीछे. मैंने यहाँ पे पोर्ट 22 डाला था तभी वो खुद ही SFTP आ गया लिखा हुआ पीछे. बट अगर ये जो सर्वर है जहाँ सर्वर पे मैं जा रहा हूँ, अगर ये सर्वर पोर्ट 22 पे लिसन कर रहा होता तो ये कनेक्ट हो जाता, गिवन कि मेरा पासवर्ड एंड यूजर नेम आर करेक्ट ऑल्सो. ठीक है ना. बट इसमें जो ट्रांसमिशन होती है ना क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, जितना भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो सिक्योरली ट्रांसफर होता है, वो इंक्रिप्टेड होता है. तो वो डेटा कोई और रीड नहीं कर सकता है अनलेस दे हैव अ सर्टिफिकेट ऑल्सो. SMB, Server Message Block, is a protocol originally developed by IBM but then enhanced by Microsoft, IBM, Intel and others. It's used to provide shared access to files, printers and other network resources. जैसे मैंने ऊपर बताया SMB का नया वर्जन 3 जो है little more secure. SMB वर्जन 1 आया, 2 आया and then 3 आया. believe नहीं 4 नहीं आया, फिर CIF आएगा. बट SMB version 3 is more encrypted compared to SMB version 1. काफी एप्लीकेशन SMB version 1 अब यूज नहीं कर रही है. SMTP. So we already look at the how the protocols to download the email, meaning receiving the email. जो POP3 और IMAP हमने देखा ना अभी ऊपर, वो emails को receive करता है. अभी हमें email भेजनी हो उसका प्रोटोकॉल अलग होता है. सेम प्रोटोकॉल के ऊपर आने जाने का नहीं होता है. एक प्रोटोकॉल पे आता है दूसरे पे जाता है. जो जाता है ना वो ये है SMTP. It's called Simple Mail Transfer Protocol. Is the protocol most commonly used to send email messages. Because it is designed to send only, it's referred to as push control. Meaning, इसका काम है push करना, इसका वो काम नहीं है, receive करना काम नहीं है, ये खाली push करता है. SMTP is the protocol used to send email from mail server to mail server as well as from a mail server to an email client. An email client locates its email server by querying the DNS server for mail exchange. After the server is located, SMTP is used to push the message to the email server, which will then process the message for delivery.
अभी जब किसी को मेल भेजनी हो, अगर आपको किसी को मेल भेजनी है तो आपका जो ईमेल क्लाइंट है ना, जब आप सेंड का बटन दबाते हो तो जो आपने डाला होता है, फॉर एग्जांपल john@gmail.com, आप उनको ईमेल भेज रहे हो तो john@gmail.com जो है ना, सबसे पहले तो वो क्वेरी करेगा उसके डीएनएस सर्वर को। देखिए वापस डीएनएस आ गया ना यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि डीएनएस सर्वर को क्वेरी करेगा। क्वेरी मतलब पूछेगा कि भाई ये ईमेल कहाँ जा रही है, तो देखेगा ओके john@gmail.com, gmail.com is the DNS server, one of the first of the DNS server, ठीक है। वो अभी gmail.com के अंदर जाके देखेगा कि भाई इसका MX record क्या है। MX record का मतलब होता है मेल एक्सचेंज। अच्छा अभी let me see, I want to show this to you। बात होता है, ऐसा होता है कि हम गलत ईमेल डालते हैं और वो रिटर्न मेल आता है कि वी डिड नॉट फाउंड दिस। हाँ राइट, उसका भी मैं बताता हूँ वो क्यों होता है। तो देखें मुझे कोई, चलिए जीमेल ही पकड़ते हैं ना, जीमेल का क्या बताता है, लेट्स सी। देखें यहाँ पे ये है जीमेल का MX record, मीनिंग ये जीमेल के कुछ सर्वर हैं, SMTP सर्वर। देखिए आप देख सकते हैं जीमेल का प्राइमरी सर्वर 2 हैं इनके, फिर अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, 3 एंड 4, इनके ये अलग अलग सर्वर्स हैं जो कि बेसिकली इनका काम है मैसेज को सेंड करना। आई एम प्रीटी श्योर इनके और भी सर्वर होंगे, एक्सक्यूज मी, बट ये MX record बताते हैं। अभी मुझे आई वांट टू शो यू, लेट मी सी क्विकली। Let's do DNS check। ये नेम सर्वर बताएगा, आई एम लुकिंग फॉर, चले इसमें नहीं शो कर रहा, बट सो बेसिकली MX जो records क्या है। सो अभी हम कहाँ पहुंचे थे, हमने क्लिक किया, ईमेल को सेंड किया, उसने देखा gmail.com का एक्सचेंज सर्वर सबसे नज़दीक में कहाँ है, वो यहाँ पे आके देखेगा, या MX सर्वर जो है ना, MX एक्सचेंज, उस पे आके देखेगा मेल एक्सचेंज। वो इनमें से किसी एक सर्वर को पकड़ेगा, कोई भी नज़दीक वाला जो भी सर्वर होगा जो अवेलेबल होगा और इट्स लाइव, इट्स नॉट डेड, वो उस सर्वर को पकड़ेगा। उसके बाद उस सर्वर को लोकेट करेगा एंड देन वो SMTP उसको पुश करेगा, वो ईमेल, आपका ईमेल उसको पुश करेगा। अब जरूरी नहीं है वो ईमेल उनको मिल जाएगा, क्योंकि अब उनके कितने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, वो आपके ईमेल को चेक करेगा, इसमें कोई वायरस तो नहीं है, इसमें कोई मैलवेयर तो नहीं है, फिर उसको रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, फिर वो उन पे है, और वो अलग उसका स्पैम कंट्रोल एंड फिल्टर आता है। बट यहाँ तक आप समझे कि उसने उसको फाइंड किया, SMTP उसको ईमेल को पुश करता है और वहां पे भेज देता है ईमेल, ठीक है। SNMP, Simple Network Management Protocol. So basically it gathers and manages network performance information. On your network you might have several connectivity devices such as routers and switches. A management device called an SNMP server can be set up to collect data from these devices called agents and ensure that your network is operating properly. Although it's mostly used to monitor connectivity devices, many other network devices are SNMP compatible as well. The most current version is SNMP version 3. ठीक है। SNMP बेसिकली क्या है, आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहाँ पे मोस्टली यूज होता है। उसके अंदर जैसे छोटी छोटी कंपनी में तो 1 के 2 राउटर लगे हुए होते हैं, चलो ठीक है, वो यू डोंट नीड टू मॉनिटर दैट। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर 50, 100, 1000, 6-7 राउटर और एक्सेस पॉइंट और स्विचेस लगी हुई होती हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, ये हर उस स्विचेस के अंदर ये SNMP का प्रोटोकॉल होता है 1, 2, 3। 3 इज द मोस्ट इनक्रिप्टेड वन। उसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क की जो डिवाइसेस के अंदर की जो हेल्थ
इंफॉर्मेशन होती है ना कि भाई इसका लेट्स से फॉर स्विच का सीपीयू का कंजम्पशन कितना हो रहा है, उसकी मेमोरी कितनी यूज हो रही है, उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं आ रहे, क्या स्विच का पोर्ट नंबर 1 या 2 या 3 डेड तो नहीं हो गया, कुछ खराब तो नहीं हो गया। ये SNMP वो लॉग सेंड करता है आपके SNMP सर्वर को। वैसे हम बहुत सारी जगहों से ये डेटा कलेक्ट करके फिर उसका एक दूसरा टूल आता है, उसके अंदर जाके हम देखते हैं, दैट्स कॉल्ड SNMP लॉग कलेक्टर। लॉग जो आती है उसको कलेक्ट करता है, फिर उसको अच्छी तरह से आपको शो करता है। मेरे पास उसकी एग्जांपल नहीं है, बट लेट मी गिव यू एन ऑनलाइन एग्जांपल। कहीं पे पिक्चर मिल जाए तो आई कैन मे बी जस्ट एक्सप्लेन यू ओवर दैट। ये लॉग्स देखें ऐसी लगती है, ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगा इसके अंदर कि ये क्या है, बट आप ज़रा गौर से देखें, अगर इसको लिखा हुआ है सिस्टम अप टाइम, ये टाइम बता रहा है कि कौन से कितने टाइम से ये अप है। अभी इसमें दिन होगा, सेकंड्स होगा, आई एम नॉट श्योर, जो भी उनकी सेटिंग होगी उस बेस पे दे रहा है। टेम्परेचर बता रहा है इसको 40 सेल्सियस विच इज़ 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। सिस्टम टेम्परेचर बता रहा है, आई कैन नॉट स्क्रॉल, बट ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब खाली ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, और भी इन्फॉर्मेशन देता है, ये तो खाली उसकी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देयर सो मेनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट। वैसे ही SNMP के अलावा सिस लॉग भी आता है विच डज समवट सिमिलर, बट द होल कॉन्सेप्ट इज कि SNMP इज यूज्ड टू कलेक्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें? ओके। SSH Secure Shell Protocol can be used to set up a secure Telnet session for remote logins or for remotely executing programs or transferring files. Because it's secure, it was originally designed to be a replacement for the unsecure Telnet command. The common client interface using SSH is called OpenSSH. ये Telnet का इन्होंने नीचे बता रहे हैं, ये Telnet is not secure। हम पहले पढ़ते हैं फिर ऊपर SSH आते हैं, ठीक है, it should be the other way around. So it seems as though Telnet has been around since the beginning of the time as a terminal emulation protocol. Someone using Telnet can log into another machine and see the remote computer in a window on their screen. Although this version is text only, the user can manage files on that remote machine just as if they were logged in locally. Okay. Telnet जो है इतना यूज नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो है राउटर्स एंड स्विचेस, उसके अंदर ये Telnet के ऑप्शन फिर भी होते हैं अवेलेबल। पर Telnet को मोर सिक्योर करने के लिए दे केम अप विद द प्रोटोकॉल कॉल्ड SSH। SSH जो है वो Telnet को ओवरराइड करता है, ओवरराइड इन अ सेंस कि नो वन यूजेस Telnet, बट SSH के अंदर आप फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो कि आप SFTP में भी करते हैं। SSH और SFTP के प्रोटोकॉल सेम है, पोर्ट 22 इसके अंदर। अब लेट मी सी इफ आई हैव 30। अरे यार सर्च कर रहा है, एक सेकंड में, तो आई हैव पढ़ी है। हाँ ये पढ़ी मस्ट हो गई। सो इन्होंने यहाँ पे बात की है कि कॉल OpenSSH, ये भी एक एप्लीकेशन है, आप यूज कर सकते हैं, पर इज यूज क्वाइट कॉमनली। मुझे इसकी IP एक तो नहीं पता, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी लुक एट द IP रियल क्विक।
60। तो हम एक सिस्को डिवाइस है उसके अंदर SSH करने की कोशिश करते हैं। अरे शूट, मुझे नहीं पता SSH उसका ओपन है कि नहीं। लेट्स सी। ओके, आई डोंट थिंक इट्स ओपन। एनीवे, तो SSH ऐसे करते हैं। जो इन्होंने ओपन SSH के बारे में बताया है ना, आप पटी भी यूज कर सकते हैं। पटी के अंदर आप बेसिकली यहाँ पे आके ये जो विंडो आती है ये टाइम आउट हो गया बिकॉज पोर्ट 22 इज नॉट ओपन। बट SSH आप ऐसे कर सकते हैं। टेलनेट भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए टेलनेट का प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है, ये रहा, जो पोर्ट नंबर 23 पे चलता है। SSH जो है जगह खुद ही चेंज हो जाता है, वो पोर्ट नंबर 22 पे चलता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी डिवाइस के अंदर लॉगिन होना हो ऑन अ कमांड लाइन, आप उसकी IP टाइप करें एंड आप ओपन करेंगे। वो ब्लैक वाला जो सेशन था विंडो, वो ओपन हो जाएगा एंड देन यू एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन यू आर इन। That's what they're talking about, terminal. It's a terminal. Okay. Host to host layer protocol. After the myriad protocols at the process application layer, the simplicity of the host to host layer is welcome. At this layer, there are two alternatives within the TCP suite, TCP and UDP. The major difference between the two is that TCP guarantees packet delivery through the use of a virtual circuit and data acknowledgement, and UDP does not. जैसे मैंने पहले बताया, TCP एक्नॉलेज करता है जब वो पैकेट सेंड करता है और रिसीव करता है, इट एक्नॉलेजेस इट, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होगा। UDP जो है वो वेरीफाई नहीं करता है, वो बस इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है या कनेक्शन क्लोज कर देता है, बट इट डज नॉट वेरीफाई। So because of this, TCP is often referred to as connection oriented, whereas UDP is connectionless. Because UDP is connectionless, it does tend to be somewhat faster, but we are talking about milliseconds here. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पहले, जब हम VPN एक्सेस करते हैं क्लाइंट, तो वो UDP के ऊपर अमूमन चलाना little bit faster compared to TCP, because every time आप UDP पे चलाते हैं तो ये पैकेट सेंड करता रहता है, वेरिफिकेशन नहीं मांगता है, तो आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है। TCP जो है वो पैकेट सेंड करता रहता है, लेकिन अगर उसको वहां से जवाब नहीं मिलता है तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा, विच मीन्स आपका VPN डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रिकनेक्ट डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट बार बार ऐसे ही होता रहेगा। UDP में ऐसा नहीं होगा, वो कनेक्ट ही रहेगा, वो बस UDP के सेशन भेजता रहेगा। इट्स नॉट गोना लुक फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट। Another key concept to understand about TCP and UDP is the use of port numbers. Imagine a web server that is managing connections from incoming users who are viewing web content and others who are downloading files. TCP and UDP use port numbers to keep track of these conversations and make sure that the data gets to a right application and right end user. Conversely, when a client makes a request of a server, it needs to do so on a specific port to make sure that the right application on the server hears the request. For example, जब हम पोर्ट HTTP की वेबसाइट पे जाते हैं, उसके लिए जो पोर्ट यूज होता है वो यूज होता है पोर्ट 80। ये लोग बेसिकली ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अगर सेम यूजर है, उसको HTTP रिक्वेस्ट पे जाना है, तो HTTP रिक्वेस्ट google.com करता है फॉर एग्जांपल, तो जब हम google.com करते हैं तो वो रिक्वेस्ट पहले जो जाएगी वो पोर्ट 80 पे जाएगी, फिर उसको HTTPS में गूगल वाले भी कन्वर्ट कर देंगे तो वो चली जाएगी 443 पे। और भाई हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है गूगल से, गूगल माइट बी नॉट अ गुड एग्जांपल हियर बिकॉज गूगल जो है वो अपने DNS सर्वर यूज करते हैं, बट आई विल गिव यू ए क्विक ओवरव्यू। जैसे कि मुझे कहीं पे जाना है, बदिए ये सारे जो है
57:443, जैसे आप 443 देखते हैं, it's that port is not there. Anyway, मेरे पास पोर्ट की एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है, कोई मेरे पास सर्वर नहीं है जिसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स हो, so I cannot really show you, but what I can tell you is that जब भी हमें ये मेक श्योर करना होता है कि भाई हम आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन से सर्वर के ऊपर जाना है, वहाँ पे हमें पोर्ट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है. अगर हम पोर्ट नहीं डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पोर्ट 80 या 443 के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करेगा. पर अगर आप ब्राउज़र के ऊपर ही कहीं FTP पे कनेक्ट हो रहे हैं सर्वर पे, तो यू विल हैव टू टाइप इन पोर्ट 21. हम एक्चुअली वी कैन प्रॉब्ली ट्राई something like vim.org:21. Let's see. No. Okay. मेरे पास इसकी और एग्जांपल होगी लेटर ऑन. मैं एक सर्वर स्पिन अप करूंगा एंड आई विल शो यू कि ये व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. बट अभी आप बस ये समझ लें कि किसी भी अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाना हो, एक वेबसाइट का काम है वेब पेज शो करना, तो वो पोर्ट 80 के ऊपर या 443 पे चलेगा. या दूसरे सर्वर का काम अगर ये है कि आपको फाइल सर्वर के थ्रू दे, तो उसका पोर्ट आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा या तो मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर. ठीक है. If you want sports that might be on one channel, but weather is on a different channel, and the cooking show is yet on another channel, those channels are analogous to ports. You know that if you want a cooking show, you need to turn on to channel 923. Similarly, the client computer on a network knows that if it needs to ask a question in HTTP, it needs to go on to port 80. There are over 65,000 ports from 0 to 65, 535 ports. Ports 0 through 1023 are called well-known ports, or also called low ports, and are assigned to commonly used services. 1024 to 49,151 are called registered ports. Anything from 49,152 to 65,535 is free to be used by application vendors. 0 से लेके 1024 तक जितने भी ports होते हैं ना, they are ports which are reserved already. Reserved meaning there are so many applications which already uses ports in between these number range. They are called low ports. Anything above that, it's called high ports. ये word आपको आगे जाके भी आएगा. ये जो पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे वो 0 to 1024 के रेंज के अंदर आते हैं, और these are all low ports. पोर्ट्स वैसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे ना तो खुद ही आना शुरू हो जाएंगे. आपको एग्ज़ाम के लिए शायद आपको थोड़ा सा याद करना पड़े, बट रियल लाइफ के अंदर ये बहुत ही कॉमन पोर्ट्स हैं. FTP 20 and 21 data, the 20 is the data port, and FTP 21 is the file transfer port. SSH का port 22, Telnet का 23, SMTP का 25. ये चार port is very commonly used. Actually DNS is very commonly used as well, which is 53. DHCP के जो है आपको you're not gonna need to know much. Maybe exam के लिए you might, but in real life you might not need to know much. POP3 ज़्यादा use होता नहीं है, but it's 110, very common port as well. And SMB, most commonly you will see 445, but you will also see 137 to 139 as well. IMAP 143 is a secure port. SNMP, ये सारे actually these are very commonly used ports.
LDAP 389, LDAP-S वो उन्होंने शो नहीं किया है। LDAP जो है ना, अब ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। LDAP-S यूज़ होता है, विच इज़ सिक्योर प्रोटोकॉल, यूजेस ऑन 636। यहाँ पे नहीं दिया हुआ उन्होंने, बट इट्स यूजेस ऑन 636। ओके, RDP पोर्ट, HTTPS पोर्ट, ये कॉमनली यूज पोर्ट्स है। Internet layer protocols. At the internet layer, there is one key protocol and a few helpful support protocols. The main workhorse of TCP/IP is the internet protocol, and it can be found at this layer. IP is responsible for managing logical network addresses and ultimately getting data from point A to point B. Even if there are dozens of points in between, we will cover IP addressing more in the next session. IP का काम बेसिकली यही है, एक पॉइंट A से पॉइंट B तक उस डेटा को ट्रांसफर करने का, पर वो डेटा किसको किस वक्त किस टाइम देने का वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो भी वो डिटरमिन करता है। There are 3 support protocols of which you should be aware of. ICMP is responsible for delivering error messages. If you are familiar with the ping utility, जैसे मैंने बताया ping पहले, that's used for the ICMP to send and receive packets. ARP, also known as Address Resolution Protocol, resolves logical IP addresses to physical MAC addresses built into network cards. Reverse ARP resolves MAC addresses to IP addresses. ARP जो है ARP वो लॉजिकल IP addresses को IP address को कनेक्ट करता है MAC एड्रेस से। देखें आप, फर्स्ट ऑफ ऑल MAC एड्रेस क्या है? MAC एड्रेस आई थिंक हमने ऊपर कवर किया था। MAC एड्रेस इज like a WIN number for any physical device. सब डिवाइस, जितनी भी दुनिया में डिवाइसेस होते हैं, यहाँ से लाके लैपटॉप, नेटवर्क कार्ड, कोई भी, उसका MAC एड्रेस तो होगा, ठीक है। तो ये जो फिजिकल एड्रेस आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, सबके अलग अलग होंगे। देखिए इसका अलग है, ये ऊपर वाले का अलग है एक्चुअली। देखें खाली फर्स्ट लेटर 2A 28 यहाँ पे अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखें फर्स्ट टू आर डिफरेंट, द रेस्ट इज द सेम, पर ये फर्स्ट टू के डिफरेंट होने की वजह से दिस इज स्टिल अ यूनिक। ओके, अब ARP का क्या काम है? ARP जो है ये जो IP है, इस IP को इस MAC एड्रेस से ज्वाइन करता है। ज्वाइन करता है मुराद के, अगर मैं 192.168.29.2 टाइप करूं तो ये नेटवर्क को पता है कि ये जो IP कोई भी सेंड इंफॉर्मेशन इस IP के ऊपर सेंड करना है, मुझे किसको देनी है। जैसे मैंने बताया ना कि उसको कैसे पता चलेगा कि भाई हजारों कंप्यूटर होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये मैं किसको दूं? तो ARP का काम ये है। ARP इज ए राउटिंग टेबल, पूरा टेबल होता है ARP का, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये जो IP है, ये वाली IP, इस IP पे कोई भी मैसेज आए तो आप इस वाले NIC विच इज ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसको सेंड कर देना। अगर आपको कोई भी मैसेज इस वाली IP पे आए तो आप इस वाले MAC एड्रेस पे सेंड कर देना। तो ये ARP का काम है, ठीक है। और रिवर्स ARP का काम इज टोटली ऑपोजिट, इट रिजॉल्व्स MAC एड्रेसेस टू IP एड्रेसेस। MAC एड्रेसेस को आप यू कैन सर्च, आप MAC एड्रेस के थ्रू सर्च करेंगे ना तो उस MAC एड्रेस की आपको IP बता देगा वो। तो ये रिवर्स सर्च और ये स्ट्रेट सर्च, IP टू MAC और दिस इज MAC टू IP, ठीक है। To communicate on a TCP/IP network, each device needs to have a unique IP address. Any device with an IP address is referred to as a host. This can include server, workstation, printers, and routers. If you can assign it an IP address, it's a host. किसी भी आइटम को, डिवाइस को आप IP address असाइन करते हैं, वो डिवाइस बन जाता है फिर host. That's what we call it, host. किसी भी चीज को हमने IP एड्रेस असाइन की, वो होस्ट बन गया। As an administrator, you can assign the host's IP configuration information manually. आप किसी भी डिवाइस को मैन्युअली, is also called the static IP address,
आप दे सकते हैं, और चाहे तो इट कैन बी असाइन ऑटोमेटिकली बाय DHCP सर्वर। जैसे मैंने ऊपर बताया DHCP का क्या काम है, DHCP सर्वर खुद ही उसको जो भी नेक्स्ट IP अवेलेबल होगी वो भी उसको दे सकता है किसी भी डिवाइस को आपके। An IPv4 address is a 32-bit hierarchical address that identifies a host on the network. It's typically written in dotted decimal notation such as 192.168.10.55. Dot आते हैं ना उसमें। Each of the numbers on this example represents 8 bits or 1 byte of the address, also known as an octet. ये जो है this is first octet, dot से पहले जितने भी हैं first octet, second octet, third octet and fourth octet, ये पूरा। अभी doesn't matter इसके अंदर 3 नंबर डिजिट हो या 2 डिजिट हो या 1 हो, हाँ no doesn't matter। ये dot every time you pass the dot it's 1 octet, second octet, third octet, ठीक है। The same address written in binary, how the computer thinks about it would be this। यही जो IP है, computer doesn't really know numbers, computer knows this right here। हाँ, अब आप ये 01 110000 इसका कन्वर्जन करेंगे ना बाइनरी का, इसका फॉर्मूला है, हम अगर आगे शो करेंगे तो विल डू इट, बट इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर निकलेगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को खाली यही पता है, दे डोंट नो एनीथिंग, कंप्यूटर्स आर डम, दे ओनली नो व्हाट वी टेल देम, एटलीस्ट आज की तारीख में। AI आ जाएगा तो फिर वो अपनी खुद ही सोचेगा। हाँ। So as you can see, that dotted decimal version is a much more convenient way to write these numbers, है ना। हमें ये थोड़ा easily समझ आ जाता है, पर हमें इतना ये समझ नहीं आता है। The addresses are said to be hierarchical as opposed to flat, because the numbers at the beginning of the address identify groups of computers that belong to the same network. Because of the hierarchical address structure, we are able to do really cool things like route packets between local networks and on the internet। भाई ये इतना इजी हो जाता है कि इसकी वजह से हम पैकेट्स को राउट कर सकते हैं, यू नो, टेबल बना सकते हैं थिंग्स। अगर हमें ये लिखना पड़ता तो बहुत ही टाइम लग जाता काम करने में, तो that's what they're saying, it's a little bit easier to do it this way। Great example of hierarchical addressing is your street address। Let's say that you live in apartment 4B at 123 Main Street, Anytown, Kansas, USA, ये आपका एड्रेस है। Now if someone sends you a letter via snail mail वो घर का जो है ना, फिजिकल मेल, ईमेल की बात नहीं है, स्नेल, हाँ, फिजिकल मेल कोई भेज रहा है, तो the hierarchy of your address helps the post service and courier delivery to deliver to the right place, एड्रेस के बेस के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, first and broadest is USA, Kansas helps narrow it down। तो ये रिवर्स हायरार्की आपकी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो आप कंट्री देखते हो कौन सी कंट्री है, फिर आप नैरो सर्च करते हो कंट्री के अंदर कौन सा स्टेट, ओके भाई कैंसस है, हाँ कैंसस का स्टेट के अंदर अब सिटी देखो नेक्स्ट, एनी टाउन, ओके एनी टाउन के अंदर अब ये वाली स्ट्रीट कहाँ पे है, हर यू नो ये पीछे आप उसको नैरो डाउन करके देन यू गेट टू द मेन एड्रेस एंड देन यू डिलीवर द आइटम। वैसे ही ये IP भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ARP टेबल और ये सब यूटिलाइज होता है टू गेट टू इट्स डेस्टिनेशन। Now take this analogy back to IP address. They are set up to organize networks logically in order to make delivery between them possible, and then to identify an individual node within a network. If this structure weren't in place, a huge multi-network space like the internet probably wouldn't be possible. अगर ये नहीं होता तो जो इतना बड़ा जो इंटरनेट का पूरा जाल बिछा हुआ है दुनिया में वो चलता ही नहीं। A quick binary tutorial. चलिए इन्होंने tutorial दिया है, let's see. As we mentioned earlier, each IP address is written in 4 octets in dotted decimal notation, but each octet represents 8 bits. A binary bit is a value with 2 possible states, on equal 1 and off equals 0. 1 का मतलब on, 0 का मतलब off. If the bit is turned on, it has a decimal value based upon its position
within the octet. An off bit always equals 0. जितने भी यहाँ पे ऐसा नहीं से ये मुझे भी नहीं आ I have not done it this way. I have done it a different way. उसका formula actually मेरे पास इस computer पे नहीं है, but I will give it to you later on, which makes it a little bit more easier. But anyway, यहाँ पे they're just talking about position in octet. अगर octet number 8 है तो bit is उसका 1 होगा, has a decimal value of 128, and mathematically उसको जो conversion करेंगे आप वो 2 character 7 के ऊपर conversion होगी. वैसे ही जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे उसके जो डेसिमल वैल्यू है वो ड्रॉप होती जाएगी, ठीक है ना. बल्कि जो बिट है it's gonna remain the same is what they're saying. Let's see if there's a little bit more deeper. हाँ देखेंगे फॉर्मूला दिया है. If all of the bits is an octet are off or zeros, the corresponding decimal value is 0. ठीक है ना. अगर सारे उसके zeros हैं तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 0 ही होगी. If all bits in an octet are on, you will have all ones. अगर उसकी octet के अंदर उसकी position on है तो then सारे जो है वो 1 होंगे, which convert होते हैं 255 which you know becomes one of the octet in your IP. So when you are working with IPv4 addressing, all numbers will be between 0 and 255. 255 से ऊपर जा ही नहीं सकता नंबर, ठीक है ना. आप IP भी अगर जब सबनेट्स भी आप क्रिएट करेंगे ना तो 255 से ऊपर नहीं जाएगा. That's it. That is the limitation. That's the highest time you can get. Where it starts to get more entertaining is when you have combinations of zeros and 1. ठीक है. अभी जो ऊपर जितनी बात कर रहे हैं ये लोग खाली zeros और 1 की. अगर 0 है तो सारे 0 है तो उसका end result भी 0 आएगा. अगर 1 सारे हैं तो उसका end result ये नंबर आएगा. उसका end result 1 नहीं आएगा. डिपेंडिंग ऑन कितने 1 है उस हिसाब से आएगा, ठीक है. So now what happens if you add zeros and 1? So for example, ये इतने 1 और इतने zeros आप मिलाओगे is equal to 129, 128 bit plus 1 at the end. 0 का when you add these is equal to 42, which is 32, 8 and 2. ठीक है ना. ये conversion basically इन टेबल से नहीं हो रहा है, बट इसकी 0 और 1 की नीचे आई थिंक होपफुली दिया होगा. बट ये बाइनरी को जब आप ऐड करेंगे ना तो यू विल गेट ए नंबर 42 एज एन ऑक्टेट. सो एज यू वर्क विद IPv4 एड्रेस you will see certain patterns emerge. For example, you may be able to count quickly from left to right in an octet pattern such as 128, 192, 224, 240, 248. ये अगर आप जब काम करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा. ये आई एम ऑलरेडी लुकिंग एट दिस एज ए सबनेट्स. मैं देखिए आपको एक टूल बताता हूँ, मैं शायद उससे थोड़ा इजी हो जाए. सबनेट कैलकुलेटर, ठीक है ना. और आई थिंक इट्स नो दिस वन, आई थिंक दिस वन इज गुड. या देयर यू गो. Let's say if we do class A and bit mask. तो फॉर इंस्टेंस अभी आप ये जो सबनेट मास्क है ना उसके ऊपर ज़रा तवज्जो दीजिएगा. ये 255 है, राइट. अगर इफ आई एम गोना चेंज दिस टू लेट्स से 24, the subnet mask changes and tells you you only have 254 hosts in this. ये जो mask bit है this is the /24 and the subnet mask which converts to 225.225.225.0. अगर इसी को मैं 26 करता हूँ then you will get 192. अब ये जो आप जब देखेंगे when this changes 224, 192, 224, आप देखें 252, these are the numbers you're gonna see corresponding here into the subnet. देखा 248, 224, 254. So basically आ गया.
जैसे जैसे आप सबनेट्स में काम करेंगे ना, ये नंबर्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू एज टू ये ईच नंबर के अंदर कितने आपको होस्ट्स मिलेंगे. That's what you get if you have starting from the left 1 2 3 and so on forth up to 8 bits on in sequence in the octet. It's beyond the scope of this book to get into too much. So इसमें ज़्यादा इन्होंने डिटेल में नहीं बताया. मैं आपको इंशाल्लाह नेटवर्किंग में हम आएंगे ना, मैं आपको इसको कैलकुलेट करना भी बताऊंगा कि ये कैलकुलेट पेपर के ऊपर करना हो तो कैसे होता है. आज के ज़माने में अब कोई करता नहीं है बिकॉज यू हैव कैलकुलेटर्स लाइक दीज. आप इस कैलकुलेटर में अपनी आईपी डालें. क्लास सी यूजुअली घर के अंदर क्लास सी बहुत यूज़ होती है, तो आप आईपी डालें और आप उनको बताएं कि आपको टोटल होस्ट कितने चाहिए, मीनिंग कितने डिवाइसेस आईपी यूज़ कर सके. या तो आप रेंज देख लें, यहाँ पे जो भी आईपी होगी 01 से लेके 050 254 तक आपको डिवाइसेस मिलेंगे. अगर आप चाहें इसको बड़ा क्लास ए के अंदर क्लास सी के अंदर जो क्लास सी है खाली 254 इज द हाईएस्ट, एवरीथिंग एल्स इज बिलो दैट. एज यू कैन सी 30 होस्ट 126 होस्ट 254 होस्ट से ज़्यादा नहीं जा सकते. लेकिन अगर आप क्लास ए में जाते हैं, क्लास ए विल शो यू इफ यू कैन गो अप टू 8, if you go to up to 8 bits it gives you million. देखें यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 million 10 million 16 million आपको होस्ट क्लास ए के नेटवर्क में आप डाल सकते हैं. अमूमन कोई डालता नहीं है बिकॉज this would be a flat network and a lot of security issues with that, but 8 bits is the highest you can go. Highest, even though the number is low, but it's the highest amount of hosts you can get. 16 करोगे आप फिर भी बहुत ज़्यादा है. 65,000 अमूमन जो है /16 मैंने हमारी कंपनी में भी यूज़ होता है एक्चुअली बिकॉज इट्स अ बिग कंपनी, बट आप 24 is the most commonly used which gives you about 254 hosts. Okay, so अमूमन ये कैलकुलेटर्स ही यूज़ होते हैं. बट अगर आपको लर्न करना हो कि कैलकुलेट पेपर पे कैसे करते हैं, then I can show you those formulas which is not covered in this class. Parts of the IP address. Each IP address is made up of two components, the network ID and the host ID. The network portion of the address always comes before the host. Network portion पहले आता है, फिर host का portion आता है. Because of the way IP addresses are structured, the network portion does not have to be a specific fixed length. In other words, some computers will use 8 of the 32 bits of the network portion and the other 24 of the host portion, while other computers might use 24 bits for the network portion and remaining 8 bits for the host portion. काफ़ी कंप्यूटर जो है अमूमन 8 बिट्स 32 बिट में से सिर्फ 8 बिट जो है नेटवर्क के लिए अगर यूज करते हैं, तो उसमें से जो 24 बिट्स जो बचे होते हैं वो होस्ट के लिए करते हैं यूज. या तो फिर अगर वो 24 बिट नेटवर्क के लिए करते हैं तो जो रिमेनिंग 8 होते हैं वो होस्ट के लिए करते हैं. Here are the rules that you should know about when working with IP addresses. All host addresses on a network must be unique. हमें पता है कि नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइसेस हों वो सारे यूनिक एड्रेसेस होने चाहिए. अगर एक डिवाइस के दो डिवाइस के सेम होस्ट एड्रेस होंगे, मीनिंग के सेम आईपी एड्रेस होगी, तो इट विल गिव यू ए कॉन्फ्लिक्ट एरर, और डेटा किसी को पहुंचेगा या किसी को नहीं पहुंचेगा, बट इट्स गोना क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन द नेटवर्क. On a routed network such as the internet, all network addresses must be unique as well. Internet में भी ऐसे ही है. At a higher level, ये is controlled by BGP. वो काफ़ी थोड़ा एडवांस हो जाएगा, आप यहाँ पे कवर नहीं होगा. बट इंटरनेट के अंदर भी उनको IPv6 एक्चुअली यूज होता है. एंड हाउ दे राउट द कनेक्शन इज थ्रू BGP राउट्स. वो BGP राउट्स इंटरनल यूज भी होते हैं, बट एक्सटर्नली यू नीड सम वे ऑफ इंटरनेट और द कनेक्शंस जो है टू फाइंड ईच अदर. So they have a unique address on internet as well. So neither the network ID nor the host ID can be set to all OS, all zeros.
A host ID portion of all zeros means this network. Zero means, you know, it's off, so it's this network. Either the network ID nor the host ID can be set to all ones. A host ID portion of all ones means all hosts on this network, commonly known as broadcast address. ठीक है, तो अगर नेटवर्क आईडी किसी होस्ट, किसी नेटवर्क आईडी की या होस्ट आईडी, होस्ट इज अ डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम आप समझ लें. नेटवर्क आईडी जो आपका जो नेटवर्क है, राउटर के डिवाइस की बात नहीं कर रहा मैं, उस राउटर के नेटवर्क की बात कर रहा हूँ. अगर उसमें सारे वंस होंगे तो इट्स गोना कॉल इट इटसेल्फ ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस. जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है ना, it is not assigned to anything, and I will show you right here. अब देखिए, मैं ये वाली आईपी लेता हूँ because lot of people को समझ आती है. 192.168.0.1 होस्ट एड्रेस रेंज. आप देखें, सबसे पहले रेंज मुझे दे रहा है कि भाई देखो, मुझे आईपी नंबर 1 से लेके आईपी नंबर 254 तक मैं जा सकता हूँ. लेकिन वो उस आईपी का क्या हुआ, 255, वो आईपी भी तो है मौजूद, वो नहीं आ रही शो. वो आप किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज कि देखें वो आईपी वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, वो सेफ होता है. वो लास्ट की जो आईपी होती है और शुरू की आईपी होती है. ये देखें, शुरू की आईपी भी इज सबनेट आईपी, ठीक है ना. तो ये आप किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज योर नेटवर्क विल नॉट वर्क. It needs a broadcast address to be able to broadcast the network outside from your network. ठीक है. Computers are able to differentiate where the network ID ends and the host address begins through the use of a subnet mask. This is a value written just like an IP address and may look something like जो मैंने अभी ऊपर बताया, subnet mask 255.255.255.0. Any bit that is set to a 1 in the subnet mask makes the corresponding bit in the IP address part of the network ID, regardless of whether the bit in the address is on or off. When setting bits to 1 in a subnet mask, you always have to turn them on sequentially from left to right. So that's the bits representing the network address are always contiguous and come first. The rest of the address will be the host ID. The number 255 is the highest number you will ever see in IP addressing, and it means that all bits in the octets are set to 1. So here's the example. Based on two numbers that we have used in this chapter so far, look at the IP address 192.168.10.55. Let's assume that the subnet mask in use is 255.255.255.0. This indicates that the first 3 octets are the network portion of the address and the last octet is the host portion. ठीक है, ये समझ में आया ना. देखें, जो फर्स्ट थ्री ऑक्टेट्स हैं, ये नेटवर्क पार्ट, जो नेटवर्क का पार्ट है ना, उसका पोर्शन है. और ये जो जीरो जो है ना, that represents the host portion, because the last digit है is what is identifying here hosts. You see hosts, 254 host. सबनेट क्या है, 0. देखिए, मैंने सबनेट चेंज किया यहाँ पे, देखिए होस्ट भी चेंज हो गया, और देखिए उसके सबनेट मास्क 128 आ गया, which means ये है /25. /25 से मकसद ये है, हम है ना आईपीस को ऐसे भी लिखते हैं. (192.168.10/25). हाँ, हम ऐसे भी लिखते हैं. ये जो है काफ़ी एडवांस जो राउटर्स और होंगे उसमें सेटिंग्स ऐसी होती है. तो /25 जो है डिटरमिन्स दिस. /25 डिटरमिन्स कि भाई ये सबनेट मास्क ये है, उसके अंदर 126 होस्ट होंगे. मैं चाहूँ तो इस /25 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 255.255.255.128. सही ना.
तो ये जो है ये मेरा है सबनेट मास्क, ये मेरी आईपी है। इन दी अदर वर्ड्स ये भी सबनेट मास्क ही हुआ। ओके, /25 is actually a subnet mask. /26 anything after slash आप डालते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। सबनेट मास्क वो डिटरमिन करता है। To communicate using IPv4, each computer is required to have an IP address and correct subnet mask. A third component called the default gateway identifies the IP address of the device that it will allow the host to connect outside of the local network. This is typically your router, and it's required if you want to communicate with computers outside of your network. हमने दो चीज तो देख ली, हमने देख लिया एक IP एड्रेस देख लिया हमने, और सबनेट मास्क। ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती है लोकली बात करने के लिए। तीसरी चीज जो यहाँ पे आपको नहीं देगी वो इज डिफॉल्ट गेटवे। इन्होंने बात की है यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे की। डिफॉल्ट गेटवे होना जरूरी है अगर आप चाहो कि मेरा डिवाइस किसी और डिवाइस से या तो किसी और आउटसाइड ऑफ योर नेटवर्क बात करे, तो उसके लिए डिफॉल्ट गेटवे होना बहुत जरूरी है। डिफॉल्ट गेटवे क्या है? जब हम लेट्स सी यहाँ पे नहीं बिकॉज़ इट इज वर्चुअल सो वी विल गिव दिस। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले तो आईपी एड्रेस देख लें, आप ये IPv4 एड्रेस आपको दिख रही है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस हो गई। हाँ, उसके नीचे ये सबनेट मास्क आपको दिख रहा है, ये भी हमने समझ लिया। और ये डिफॉल्ट गेटवे क्या है? ये डिफॉल्ट गेटवे अगर आप देखेंगे तो यूजुअली ये हम राउटर के ऊपर जो सेट करते हैं ये वो है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम राउटर की जो डेस्टिनेशन होती है ना, ये वो एड्रेस होता है। बिकॉज बेसिकली हो क्या रहा है कि ये आपकी जो ऊपर की जो आपके कंप्यूटर की आईपी है, वो आप कोई भी मैसेज या इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, google.com पे आप जाएंगे, तो वो इस आपकी आईपी से निकल के यहाँ पे जाएगा। सबसे पहले आपके डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगा, फिर डिफॉल्ट गेटवे आपका होगा राउटर या जो भी फायरवॉल जो भी, उसके अंदर भी दूसरा राउट सेट होता है। उसके अंदर राउट सेट होता है, बोलता है कि भाई मेरी पब्लिक आईपी ये है, जो भी होगा आपकी पब्लिक आईपी होगी, वो पब्लिक आईपी ये है, मैं इस आईपी से एग्जिट हूं। तो ये थोड़ा मैं एडवांस में जा रहा हूं, बट आपको बस क्विकली समझा रहा हूं। ये तो हमारी हो गई, ये अगर याद हो हमारी होगी कंप्यूटर की आईपी, ये इंटरफेस आईपी। अब ये इंटरफेस पे से जाएगा हमारा जो भी हम ट्रैफिक बोलेंगे वो जाएगा गेटवे पर। ये गेटवे पे क्या आईपी होगी, और ये जो गेटवे है वो उसको सेंड करेगा डिफॉल्ट राउट पे। ये डिफॉल्ट राउट का मतलब ये 000, ये बाहर का includes all the network, 0000 includes all the network। हाँ, so अगर आपको आपके लोकल नेटवर्क से बाहर जाना हो इंटरनेट पे, तो ये 000 होने का बहुत जरूरी है राउटर के ऊपर। तो डिफॉल्ट गेटवे इज बेसिकली दैट। इज टेक्निकली आपके राउटर की जो सेटिंग्स होती है, राउटर का एड्रेस इज द डिफॉल्ट गेटवे। IPv4 address classes. The designers of TCP/IP designated classes of network based on first 3 bits of the IP address. As you will see, classes differ in how many different. मैंने अभी क्लास की बात की, ये है आपकी क्लासेस। नेटवर्क क्लास देख रहे हो आप, क्लास A मैं क्लिक करता हूं तो वो 10 से स्टार्ट होती है उसकी आईपी 10। फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, 001 है, मैं इसको डालूं चाहूँ तो 767 लगा दूं, जो भी लगा दूं, बहुत लगा सकता हूं मैं। फिर जितनी भी आईपीज होंगी ये उसी रेंज में आएगी, देख रहे हैं। मैं चाहूँ तो इसको और भी नैरो डाउन कर दूं, उसमें डाल दूं 255। लेट्स सी क्या कैलकुलेट करता है वो। Let's change it to 6।
Let's change it to 25. इसमें बेसिकली क्या करता है, every time you change this IP, it can change your host as well with the subnet mask. So basically class A जो कि IP है starts with 10, ठीक है, फिर उसके आगे आप जो भी नंबर डालो, as long as it is below 255 you should be fine. You can creative हो सकते हो आप, जैसे आपको आपका नेटवर्क डिजाइन करना हो, you can do that. Class B starts with 172, ठीक है. अगेन फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो डिटरमिन करेगा क्लास आपकी. बाकी के जो 3 ऑक्टेट्स बचे हैं उसमें आप जो भी नंबर डालो विल डिक्टेट आपका नेटवर्क कितना छोटा या बड़ा है डिपेंडिंग ऑन द सबनेट मास्क. तो क्लास बी जो है वो 172 से स्टार्ट होती है. क्लास सी जो है वो 192 से स्टार्ट होती है. मोस्टली घरों में ये वाली आईपी यूज होती है, क्लास सी. काफी लोग ये यूज करते हैं. Class A networks are defined as those with the first bits. इसको आई थिंक मैं स्किप करूंगा बिकॉज ये लोग हिस्ट्री थोड़ी बता रहे हैं. एंड हाउ मेनी यू हैव. ओके, तो क्लास ए बी सी के बारे में मैंने आपको बता दिया. ये सब चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्लास ए के अंदर जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि इतने होस्ट होल्ड कर सकता है 16 मिलियन. क्लास बी के अंदर 65,534 और क्लास सी के अंदर 2 मिलियन होस्ट. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर से भी मिल जाएगी. आप क्लास सी के ऊपर क्लिक करें, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ होस्ट. जो मैक्सिमम नंबर है 65,000, ये मैक्सिमम नंबर है 16 मिलियन क्लास ए का. क्लास सी में इन्होंने ये गलत बताया है, क्यों ऐसे बताया है? 254 होस्ट सही है. सो मैक्सिमम 254 होस्ट आपको क्लास सी के अंदर मिल जाते हैं. क्लास बी के अंदर आपको मिलते हैं तकरीबन 65,000 होस्ट. क्लास ए में 16 मिलियन. नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे. और आईपीस जो है बहुत ही सिंपल है. क्लास ए के अंदर 10 से स्टार्ट होती है, क्लास बी में 172 से और क्लास सी में 192 से. ठीक है. ये आईपी एड्रेस का क्लास लेवल का चार्ट जो इन्होंने दिया हुआ है, दिस माइट कम हैंडी. क्लास ए बी सी, B and E is reserved for multicast, you know. So ये आपको usually network के अंदर आप manually enter नहीं कर सकते हैं. But class A, B and C up to here is what we use. जैसे मैंने बताया class A जो 10 से start होती है is used for very large network. 127 reserved for the loopbacks address. लूपबैक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. बट जस्ट रिमेंबर कि 127 की जो आती है एड्रेस वो होगा 127.0.0.1. वो लूपबैक आईपी होती है, मीनिंग कि वो सेम सिस्टम को ही की आईपी होती है. क्लास बी मीडियम साइज बिजनेस के लिए और नेटवर्क के लिए यूज होती है. क्लास सी स्मॉलर नेटवर्क घर के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो. The network addresses 0 and 127 are reserved and not available for use. Specifically, the address 127.0.0.1, जैसे मैंने अभी बताया, is called the loopback address, and it's used for troubleshooting the network adapters. We will talk more about it in chapter 12. ये loopback address होता है, वो उस अपने डिवाइस के खुद का IP होता है, डिफॉल्ट IP ये वो है.
The IP address can be written in shorthand to show how many bits are being used. जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे बता रहे हैं 10.0.0.0/8 192.168.0.0/12 ये डिटरमिन करता है कि आपके होस्ट कितने होंगे। ये जो स्लैश के बाद जितना छोटा नंबर उतने ज्यादा होस्ट, सिंपल एज आप ऐसे याद रखें। स्लैश के बाद जितना बड़ा नंबर उतने कम होस्ट, स्लैश के बाद जितना छोटा नंबर उतने ज्यादा होस्ट। Classless inter-domain routing. The default subnet masks for each class of address are by no means the only subnet mask that can be used. In fact, if they were, they would severely limit the number of possible TCP/IP networks available. To resolve this and provide additional addressing flexibility, there's class inter-domain routing, CIDR. This is just a fancy way of saying you don't have to use a default subnet mask. From a practical standpoint, CIDR minimizes the concept of IP address classes and primarily focuses on number of bits that are used as part of the network. A CIDR वो ये /24/8, that's what they call that. Taking a look at the default can help illustrate how CIDR works. If you have a class A default mask of 255.0.0.0, that is this in zeros in binary. So a class B default mask of 255.255.0.0 is equivalent to this number in binary, and so on and so forth. ये CIDR वैल्यू है आपकी जो मैंने अभी डिस्कस की। अगर आप /8 लगाते हैं IP के सामने तो उसका सबनेट मास्क ये बनेगा। /24 तो /8 भी काफी कॉमन है। No, let me say /8 is common in big enterprises. हम लोग /8 यूज करते हैं, बट हम उस नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंट करते हैं। वो 16 मिलियन इज अ लॉट, बट इंटरनली हम फिर इसको सेगमेंट कर देते हैं और अलग अलग नेटवर्क निकालते हैं। /8 के अंदर 16 मिलियन होस्ट मिलते हैं आपको। तो फॉर एग्जांपल हमने समझो ऐसे बोला कि भाई 1000 होस्ट जो है खाली HR डिपार्टमेंट के, 1000 होस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के, 1000 होस्ट R&D के, वैसे ऐसे उसको सेगमेंट कर देते हैं। पर /8 बड़ी बड़ी उसमें यूज होती है। /16 भी आपको काफी दिखेंगी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। /24 इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन होम नेटवर्क एंड स्मॉल बिजनेसेस भी करते हैं काफी यूज। ये सब ये वही बोल रहे हैं जो आई जस्ट कवर्ड। /2030 gives you that many hosts. Okay, DHCP and DNS. Two critical TCP/IP services about which you need to be aware are Dynamic Host Protocol (DHCP) and DNS. Both are services that need to be installed on a server, and both provide key functionality to network clients. A DHCP server is configured to provide IP configuration information to clients automatically. This is called a lease. इसकी मैंने बात कर चुका हूँ। DHCP जो है बेसिकली IP असाइन करता है आपके होस्ट को। कोई भी होस्ट जो आपके नेटवर्क के ऊपर आता है उसको IP लीज करता है। यहाँ पे लीज का मतलब ये है कि आपका जो DHCP सर्वर चल रहा होता है ना, उसके अंदर सेटिंग्स की हुई होती है कि कोई भी नया डिवाइस आए तो उसको जो भी अवेलेबल IP हो वो दे दो, बट जो भी आप IP दे रहे हो उसको हम उसको लीज के तौर पे देंगे, उसको परमानेंटली वो IP नहीं मिलेगी। लीज का मतलब कि 7 दिन की लीज या 14 दिन की लीज, जो भी आपकी सेटिंग्स हो। पर अमूमन होता क्या है, वो लीज में रिन्यू होती रहती है। अगर वो डिवाइस है मौजूद, जैसे घर के अंदर टेनेंट अगर बैठा हुआ है तो लीज एवरी ईयर रिन्यू होती रहती है ना। अगर वो टेनेंट छोड़ के चला गया तो फिर वो लीज किसी और को दे देते हैं, कोई और टेनेंट मूव हो जाता है। ये सेम कॉन्सेप्ट है। ये लीज में अगर वो डिवाइस आपका चला गया और नया डिवाइस आ गया तो ये लीज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके DHCP के सर्वर के ऊपर 14 दिन तक रहेगी, और नया डिवाइस आ जाता है तो वो उसको देगी नहीं, क्योंकि लीज का कॉन्ट्रैक्ट उसने किसी और के साथ साइन किया था। तो उसके अंदर आप चाहो तो मैन्युअली उसकी लीज को ब्रेक कर सकते हो या रिलीज कर सकते हो, पर वो कोई करता नहीं है। कौन करता है?
रिलीज, इतनी सारी आईपी होती है वो खुद ही दूसरी दे देता है। पर अगर आप चाहो तो जाके उस आईपी को रिलीज कर सकते हो ताकि कोई भी नया डिवाइस आए तो वो आईपी यूटिलाइज हो जाए, ठीक है ना। अब द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज टिपिकली प्रोवाइडेड इन लीज। लीज के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन यूजुअली आती है, वो उसका आईपी एड्रेस देता है, सबनेट मास्क देता है, डिफॉल्ट गेटवे देता है। सी द डोर टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज द डिफॉल्ट गेटवे एंड द डीएनएस सर्वर एड्रेस, ये लीज के अंदर आपको मिल जाती है। DHCP server can provide a lot more than items on the list, but these are the most common. When DHCP configured client boots up, it sends out a broadcast on the network called DHCP Discover, requesting a DHCP server. कोई भी नया डिवाइस आता है, जैसे नया सेलफोन आपके नेटवर्क के अंदर ज्वाइन करना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो एक रिक्वेस्ट भेजता है आपके ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को, सेंड आउट ब्रॉडकास्ट मैसेज कॉल्ड DHCP Discover। आपके जो भी DHCP सर्वर होगा उसको वो रिक्वेस्ट भेजता है। इन मोस्ट यूजर केसेस इट्स द राउटर, जैसे आप राउटर में कनेक्ट होते हो तो वो राउटर को बोलता है कि भाई मैं कौन सी आईपी के ऊपर बात करूं, तो DHCP सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और उनकी रिक्वेस्ट को पूरी करता है। The alternative to DHCP of course is for administrator to enter IP configuration manually। दूसरा, अगर DHCP नहीं करना है आपको तो आप मैन्युअली भी एक डिवाइस में जाके उसके IP कनेक्ट कर सकते हो। That is called static IP or static IP addressing। That's a lot of work, but you don't do that। You only do static IP mostly on the servers। Servers की आप नहीं चाहते कि उसकी बार बार IP चेंज हो जाए। Some hosts on the network need to have static IP such as router, server, printer, है ना। Computers need to access these devices consistently ताकि उसकी IP चेंज ना हो जाए, जैसे मैंने अभी बताया। So we can skip this। DNS has one function on the network and that is to resolve host names to IP address। जैसे मैंने बताया google.com जब हम टाइप करते हैं तो वो इस IP से कनेक्ट करता है, हमें ये IP याद नहीं रहती है पर हमें google.com याद रहता है। तो DNS का फंक्शन ये है, it resolves host names to the IP address। ना वो लोग थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं DNS क्या है, पर ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। सिंपल एज दैट। मैं पिंग करता हूँ google.com तो मुझे ये IP देता है, ठीक है, 172 ये वाली, ठीक है ना, ये आईपी दे दी मुझे इसने। अभी मैं इसी को पिंग करूं आईपी को तो भी पिंग होगी क्योंकि मैं एक्चुअली गूगल पे पिंग कर रहा हूं। अभी मैं करूं अगर ns lookup google.com, देखिए वही आईपी आ रही है 172 आई ना नीचे ये वाली। अब मैं अगर करता हूं ns lookup 172.217.14.238, देखें आईपी भी वही है बिकॉज क्योंकि मैंने उसी आईपी को किया, पर ऑन टॉप ऑफ द ये मुझे सर्वर की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि ये आईपी कौन से सर्वर से। तो ये आईपी डीएनएस जो है आपका नेम गूगल आपका डीएनएस हो गया, वो डीएनएस उसको आईपी में कन्वर्ट करता है, तो ये डीएनएस का कन्वर्जन हो गई बेसिकली, सिंपल एज दैट, ठीक है। Public versus private IP address. All of the addresses that are used on the internet are called public address. They must be purchased, and not only one computer can use any given public address at one time. The problem that present itself was that the world was soon to run out of public IP addresses while the use of TCP was growing. Additionally, the structure of IP address making it possible to create or add any new IP address. बेसिकली क्या है ना, वी आर रनिंग आउट ऑफ आईपी एड्रेसेस। जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना वो कम है। अब कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि आईओटी डिवाइसेस आ जाएंगे। आईओटी डिवाइसेस की वजह से आईपीस काफी खत्म हो गई है। और आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, cell phones, every small device, camera and
everything, yes. Yeah. Your camera, your Alexa, thermostat, everything is Wi-Fi. Everything is Wi-Fi. So even door lock is Wi-Fi now. Door lock is Wi-Fi too. So because of that, we need a lot of public and private IPs as well, but public mostly, because घर के अंदर तो we can use छोटी IPs, that's not a problem. So to address this, solution was devised to allow for the use of TCP IP without requiring the assignment of a public address. The solution was to use private addresses. Private addresses are not routable on the internet. They were intended for use on a private address only. अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे की बात कर दी, वो इधर इन्होंने कवर नहीं किया अभी. जो मैं बोल रहा हूँ वो आगे जाके आएगा. ये लोग जो बोल रहे हैं, बेसिकली ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो वो क्लास ABC की जो IP थी ना, उसको कंटेन करने के लिए, क्योंकि वो तो अगर if they started making the same IP into a public IP, उसको कंटेन करने के लिए उन्होंने एक they came up with a solution called private network, which is a local intranet. अभी ये पुरानी ज़माने की बात कर रहे हैं लोग, बट लोकल इंट्रानेट जो हमारी क्लास A, क्लास B, क्लास C, 16 मिलियन IP भी बहुत है अभी. But a service called Network Address Translation was created to solve this problem. NET runs on your router and handles the translation of private non-routable IP addresses into public IP address. अब देखो भाई NET क्या करता है. मेरे पास कैसे समझाऊं? राउटर ये है अपना इंटरनेट, यहाँ पे लगा दो छोटे छोटे कंप्यूटर. आई गेस ये अपने कंप्यूटर है, कंप्यूटर, फोन, कोई भी घर का कोई डिवाइस हो आपका. ठीक है, इसकी IP मैं दे रहा हूँ. चलें, इसकी IP होगी फॉर एग्जांपल 192.168.1.10. इसकी IP हम लगा देते हैं 192.168.1.11. ये कनेक्टेड है आपके घर के राउटर से. अब अगर दो PCs को आपस में बात करनी है तो वो तो उसको बस सिंपली ऐसे ही बोलेगा कि भाई तुम अगर इस PC को, इस वाले PC को बात करनी है इस वाले PC से, तो वो उसका कनेक्शन जाएगा यहाँ से. It will go this way and then down. तो उसके लिए हमें इंटरनेट पे जाने की जरूरत पड़ी नहीं. अभी इंटरनेट पे जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने क्लास A, B और C की IP इंटरनल नेटवर्क के लिए कंटेन की हुई है, तो जो एक्सटर्नल IP अपनी होती है वो क्लास A, B, C की नहीं होगी. हमारी एक्सटर्नल IP कुछ ऐसी होगी 95, ब्लैक कलर यूज करते हैं, 95 कुछ भी, मैं वैसे कोई नंबर बना रहा हूँ. इट डजंट रियली मैटर एनीथिंग, बट लेट्स जस्ट से एनीथिंग लाइक दिस. जो भी IP होगी ये पब्लिक IP है अपनी. अब हमें इंटरनेट पे जाने के लिए, अगर हम इंटरनेट को बोलेंगे कि भाई मैं 192.168.1.11 हूँ, मुझे इंटरनेट पे जाना है, तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो. यहाँ से आप नहीं जा सकोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकोगे. इंटरनेट को पता ही नहीं होगा कौन है भाई तुम, मैं जानता ही नहीं तुम्हें. तो इंटरनेट बोलेगा नहीं, तुम्हें अगर मेरे पास आना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे आना पड़ेगा तुम्हें, फिर उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारी पब्लिक IP क्या है. तुम्हारी पब्लिक IP मुझे बताओ,
पब्लिक आईपी बताओगे, फिर उस पब्लिक आईपी से तुम यहाँ इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए। तो जो आपकी 192.168.1.11 की आईपी है ना, वो आपका राउटर उसको कन्वर्ट करता है पब्लिक आईपी में। इसको हम बोलते हैं नेट। ये नेट है जो अपने इंटरनल आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करता है। नेट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी के हिसाब से बस इतना आप समझे तो वो आगे जाके और समझ में आएगा। बट there are other things we do in net too, but just इसके अंदर this is what it's doing, network address translation, ठीक है ना। See, these private addresses, which is class A, B and C, cannot be used on the internet and cannot be routed externally. आप उसको externally route नहीं कर सकते, वो नहीं चलेगी। The fact that they are not routable on the internet is actually an advantage because the network administrator can use them essentially to hide an entire network from the internet. आप internally इसको use कर सकते हैं because ये externally IP चलेगी नहीं, तो internally आप use कर सकते हैं और अपनी जो private IP है, ये आपकी 10 वाली सारी प्राइवेट आईपी है सर्वर की, वो आपके पब्लिक आईपी के पीछे आप उसको हाइड कर सकते हैं। The network administrator sets up a net enabled router, जैसे मैंने बताया राउटर सेट करता है, उसके अंदर नेट को इनेबल करता है। फिर which functions as a default gateway, आपका राउटर डिफॉल्ट गेटवे जो मेन प्राइमरी दरवाजा है जहां से आपका इंटरनेट का कनेक्शन होगा, वो गेट राउटर के ऊपर नेट सेटिंग्स उसकी होती है इम्प्लीमेंट। The external interface of the router has a public IP address assigned to it has been provided by ISP. आपके इंटरनेट प्रोवाइडर जो WAN पोर्ट के अंदर जो आपको IP देता है, कोई भी पोर्ट कोई भी IP होगी, वो पब्लिक IP होती है। फिर the internal interface of the router will have an administrator assign private IP address with one of the range. जैसे कोई भी रेंज की, जैसे मैंने पिक्चर में बताया, वो रेंज की IP हम इंटरनली राउटर उसको DHCP के थ्रू इसको आईपी दे देगा, जो कि यहाँ पे दे दी है। फिर all computers on the internal network will then also need to be on the same network, जो same network उसमें to the outside world any request coming from internal network will appear that it's coming from this IP। तो जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी तो इंटरनेट जो है उसको खाली ये पब्लिक आईपी दिखेगी। देखो उसको ये खाली पब्लिक आईपी दिखेगी, आपकी इंटरनल उस इंटरनेट को ये नहीं पता चलेगा कि आप 192.168.1.11 से आ रहे हैं। इंटरनेट को खाली ये पता चलेगा कि आप आ रहे हैं 95.63.45.23 से। ठीक है, that's the purpose of NAT। Automatic private IP addressing APIPA is a TCP standard used to automatically configure IP-based hosts that are unable to reach a DHCP server. API private IP addresses are in the 169.254.0.0 range with a subnet mask of this. If you see a computer that has an IP address beginning in 169, you know that it is configured itself. Typically, the only time that you will see this is when the computer is supposed to receive configuration information from DHCP, but for some reason, okay. EIP is it's kind of useless, but करती क्या है, देखें ये करती है। Let's see, यहाँ पे कहीं पे है assign TV नहीं है, ओके। Let's see Windows 10 में होता है। हाँ ये परफेक्ट, देखिए भाई ये दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है ईथरनेट अडेप्टर ईथरनेट 3, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस देख रहे हैं
254.33.157. जब भी आपको any IP दिखे which starts from 169, first of all ये समझ लें it doesn't have any internet connection. It has no local area connection also because ये जो adapter है उसने अपने आप को ये IP assign की है. That's all it is. It's इस IP के थ्रू आप अपने किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और इस IP के थ्रू आप बाहर के इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं. दिस इज अ सेल्फ असाइंड IP by whichever adapter or device you are using. ठीक है ना? I hope that is a little bit clear. APIPA. ठीक है ना? तो that's what they're talking about. फिर जब उसको and that's another reason, उसको जब DHCP पे IP नहीं मिलती है ना तभी वो ये इश्यू करता है अपने आप को. जैसे कि आप ये देखें Ethernet adapter 2 उसके अंदर देखें IP असाइन है, ये 192 से स्टार्ट हो रही है, उसमें डिफॉल्ट गेटवे भी आएगा आपको, इसके अंदर आपको डिफॉल्ट गेटवे भी नहीं शो करेगा बिकॉज उसके पास कोई राउटर ही नहीं है कि वो राउटर से बात कर सके, वो अकेला है, तो वो अकेला बैठा हुआ है इसलिए अपने आप को IP असाइन कर देता है. ये Ethernet adapter 2 जो है उसके अंदर केबल लगी हुई है, वायर लगा हुआ है, वो राउटर तक पहुंच सकता है इसलिए राउटर ने उसको ये असाइन कर दी. और Ethernet 3 जो है उसमें कोई केबल ही नहीं लगी हुई है तो वो राउटर तक पहुंच ही नहीं सक रहा, तो राउटर तक नहीं पहुंच रहा तो उसने अपनी IP खुद ही असाइन कर दी. तो एनी IP स्टार्टिंग विद 169 इज APIPA IP. ठीक है ना? That's what they're talking about here. See, client will configure themselves and able to communicate either using TCP. The only downside is they will create more broader traffic. Okay. IPv6. Let's see, इन्होंने जब जैसे मैंने जो अभी बात की कि IPv4 की लिमिटेशंस है, अभी IPv4 ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, so they came up with IPv6. IPv6 जो है has about 44.3 billion addresses. Okay, so the present incarnation of TCP/IP that is used on the internet was originally developed in 1973. Considering how fast technology evolves, it's pretty much amazing to think that the protocol still enjoys immense popularity of 40 years later. The IPv4 theme. Now, if you dealt with configuring custom subnet mask, you may nod your head at the configuration part. You might be wondering how we can run out of IPv4 addresses. IPv4 has 32 bits of addressing, which allows for nearly 4.3 billion addresses. Sorry, IPv4. With the way it's structured, only about 250 million of those IP addresses are actually usable. And all of those are pretty much spoken for. So IPv4 की limitations है 250 million आप उस IP में से use कर सकते हैं जो कि सारी classes को combine करके. So new version develop इन्होंने किया IPv6 का, instead of 64 bit वो उन्होंने डाला है 128 bit. उसमें ज़्यादा bits हैं, which provides 3.4 times 10 over 38 addresses. Which theoretically should be more than enough than they will ever run out globally. So IPv6 यहाँ पे इन्होंने possibly number नहीं बताया, it should be some number. IPv6 also has many standard features that are optional but useful. While the addresses may be more difficult to remember, the automatic configuration and enhanced flexibility make the new version sparkle compared to the one. IPv6 ना अभी इंटरनल नेटवर्क में यूज नहीं हो रही है. IPv6 आप सेल फोन्स में होंगे ना, सेल फोन के अगर आपके सेल फोन के ऊपर जो इंटरनेट आ रहा है और आप उस इंटरनेट के ऊपर जाके देखेंगे whatismyip.com, तो काफी सेल फोन कंपनीज वाले IPv6 यूज कर रहे हैं बिकॉज सेल फोन कंपनीज के पास कितने सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं, तो IPv4 तो उनकी खत्म ही हो गई है इंटरनली, तो देन दे आर यूजिंग IPv6. The first thing you will notice, understanding the IPv6 addressing scheme is probably the most challenging part of the protocol enhancement. The first thing you will notice is that the address space is longer. IPv6 जो है completely different लगती है. ये देख रहे हैं, ये IPv6 है आपकी.
The second is that IPv6 uses hexadecimal notation instead of a dot. ये देखिए hexadecimal है ना, colon दो dots use करते हैं, compared to IPv4 के अंदर सिर्फ one dot use होता था. Its 128 bits address structure looks something like what is shown in figure 7.4. ये 128 bit की address है, which looks pretty long. उसमें से 2 से लेके जो D तक है, that's a global prefix. बीच का तो 0012 यहाँ पे शो कर रहा है as a subnet, and then interface ID, which is also considered a MAC address. ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, but this is a MAC. So ये इन्होंने एक IP एड्रेस के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है. The new address is composed of 8 16-bit fields, each represented by 4 hexadecimal digits and separated by colons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 in that case, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके divisions हो गए. The letters in IPv6 addresses are not case sensitive. भले छोटे हो या बड़े हो, it doesn't matter. IPv6 uses 3 types of addresses: unicast, anycast, and multicast. The unicast address identifies a single node. It identifies a single node on the network. An anycast address refers to one that has been assigned to multiple nodes. unicast address होता है ना, वो एक डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, और जो anycast का एड्रेस होता है ना, it represents multiple devices on the node. A packet addressed to an anycast address will be delivered to the closest node. जो भी पैकेट anycast के एड्रेस को डिलीवर करने का उन्होंने पैकेट ट्रांसमिट किया, वो पैकेट जो है ना, जो क्लोजेस्ट नोड होगा सबसे पहले उसको जाएगा. Sometimes you will hear this referred to as a one-to nearest addressing, or sometimes also called shortest path type thing, shortest path addressing. Finally, a multicast address is one used by multiple hosts and is used to communicate to groups of computers. IPv6 does not employ broadcast addresses. जैसे नहीं IPv4 के अंदर ये broadcast address थी, ये वाली last IP broadcast address के अंदर रिजर्व होती थी. IPv6 ऐसा नहीं करता है. Multicast handle that functionality. Each network interface can be assigned one or more addresses. Just by looking at them, it's impossible to tell the difference between unicast and anycast addresses. Their structure is the same. It's their functionality that's different. देखने में तो unicast और anycast are the same, पर उनकी functionality जो है वो थोड़ी different है, वो हम आगे जाके भी बात करेंगे. The first 4 fields or 64 bits refer to the network and subnetwork. The first 4 field, okay, or 64 bit. First 4 field क्या हो गई? 1, 2, 3, 4. The last 4 field are the interface ID, which is analogous to the host portion of the IPv4 address. Typically, the first 56 bit within the address are the routing or global prefix, and the next 8 bit refer to the subnet ID. तो 56 bit जो है, जो first 56 bits है, वो जो routing है उसके ऊपर तवज्जो देती है. तो up to यहाँ से लेके select नहीं हो रहा है, but 2 से लेके D तक जो है ये 56 bit नेटवर्क राउटिंग के ऊपर होती है, और ये आपकी सबनेट आईडी जो कि IPv4 के अंदर ये थी अपनी सबनेट आईडी, जो पहली आईपी होती थी रिजर्व, वो सबनेट आईपी थी अलग से. IPv6 के अंदर वो अलग से नहीं होती है, वो आपकी पूरी आईपी के अंदर ही आ जाती है सबनेट आईडी. It's also possible to have shorter routing prefixes though, such as 48 bits, meaning that the subnet ID will be longer.
The interface ID portion of the address can be created in one of 4 ways. It can be created automatically using interface MAC address procured from DHCP server 6, assigned randomly, or configured manually. DHCP 6 के भी सर्वर आते हैं, DHCP 4 के भी सर्वर आते हैं. आप चाहो तो उसको ऑटोमेटिकली असाइन करो या स्टैटिकली असाइन करो. मैक एड्रेस के बेस के ऊपर वो कनेक्ट हो जाएगी. Okay. The interface ID portion of the address can be created in one of the 4 ways. It can be created automatically, जैसे automatically आप दे सकते हैं, randomly assign कर सकते हैं, MAC address के base के ऊपर assign कर सकते हैं. Multicast address can take different forms. All multicast addresses use the first 8 bits as the prefix. So working with IPv6 address. जो इसमें जो multicast address होता है उसमें जो first 8 bits होते हैं ना, वो यूज होते हैं as the prefix compared to the unicast and anycast. In IPv4, the subnet mask determines the length of the network portion of the address. The network address was often written in an abbreviated form such as this /16. So ये /16 है, which is a subnet mask, वो determine करता है कि इसके host कितने होंगे. लेकिन IPv6 doesn't use a subnet mask. That same conversion for stating the network length holds true. In IPv6, network address could be written as ऐसे भी आप लिख सकते हो, the number after the slash indicates how many bits are in the routing prefix. The number जो है, this is not abbreviating to a subnet mask, but instead ये abbreviate करता है IPv6 में कि how many bits are in the routing prefix. Because the addresses are quite long, there are few ways that you can write them in shorthand. In the IPv6 world, it's all about eliminating extra zeros. So for example, take the address. ये इतना बड़ा अगर address जो है आपको, ये इतना बड़ा address, the first common way to shorten is to remove all of the leading zeros. Leading zeros मतलब जो भी शुरू के जीरो हो ना, शुरू में स्टार्टिंग जीरो आए, वो आप खत्म कर सकते हैं. ये इसको नहीं खत्म कर, बीच वाले जीरो नहीं खत्म कर सकते, स्टार्टिंग वाले. So the first common way is to shorten it to remove all of the leading zeros. Thus it could also be written as this. इसके अंदर आप देखें तो जो शुरू के जितने भी जीरोस हैं हमने खत्म कर दिए, और वो पूरा जीरो नहीं खत्म कर सकते, because that is still a bit. That's still a bit. अगर वो आप खत्म नहीं कर सकते, but 4 जीरो में से एक निकाल दो तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं हम. ठीक है. The second accepted shortcut is to replace consecutive groups of zeros with a double colon. अगर ये दो जीरोस को अगर आपको कंबाइन करना हो तो आप डबल कॉलन लगा दें, तो ये दो जीरोस उसके अंदर कवर हो जाते हैं. ये देख रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने डबल कॉलन लगाए यहाँ पे. अगर डबल कॉलन नहीं लगाते तो फिर 2 जीरो लिखना जरूरी है. It is still long but not quite as long as the original. ये फिर भी लंबा है compared to this, obviously. Compared to that is छोटा, but IPv4 के हिसाब से तो फिर भी लंबा ही है. ठीक है ना. A double colon shortcut can be used only once in an address. For example, in this address, you can count the number of fields, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and know that the double colon represents 2 fields of zeros. If, for example, you tried to write an address like this, you would have a big problem. You would know that there are 5 fields of zeros, but you would have no way to identify where exactly the 1AB4 portion of the address falls in relation to the
all zero fields. तो हम अगर ऐसे लिखेंगे तो obviously there will be a problem because इसमें कोई जीरो था नहीं. You cannot eliminate that. यहाँ पे तो DB8 था ना. There were no zeros in there, so you couldn't add that. An increasingly common occurrence is a mixed IPv4 IPv6 network. As mentioned earlier, IPv6 is a backward compatible. In the address space, this is accomplished by setting the first 80 bits to 0, the next 16 bits all to 1, and the final 32 bits to IPv4 address. So IPv6 format, the IPv4 address looks something like this. Or you will often see the same address written as this. This is a mix of IPv6 and 4. तो ये जो है डॉट 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 की वजह से आपको पता चल जाता है कि this is an IPv4 mix address followed by IPv6. ठीक है ना? But IPv6 is not being used here actually. This means all zeros. You see, we added all zeros, right? So there are a few more addresses with which you need to be familiar. In IPv4, the APIA की जो address थी वो थी 169 से start होती थी. But IPv6 accomplished the same task with the link local address जो FE से start होता है. तो FE से जो start होता है ये अपने आप को assign कर रहा है, which is a non-routable IP. जैसे हमने वो देखा था ना 169, वो 169 एड्रेस याद है आप लोगों को? मैं दिखाता हूँ. ये जो आईपी है ये अडेप्टर ने खुद ने असाइन की है. अब यहाँ पे IPv6 तो मैं ऑफ कर देता हूँ बिकॉज IPv6 हम इंटरनल यूज नहीं कर सकते हैं एंड हेंस वी डोंट नीड टू हैव ए सिक्योरिटी ऑन IPv6. अगर IPv6 आप ऑन रखते हैं तो मेक श्योर यू हैव प्रॉपर सिक्योरिटी ऑन IPv6 ऑल्सो. बट जो नॉन राउटेबल आईपी वो अपने आप को असाइन करता है which will look something like this in IPv6. Okay. Global addresses for internet use they look like this, and multicast starts with FF. यहाँ पे ये आपको शो करता है. और 00 equals and is equivalent to zeros in IPv4. ये आपका डिफॉल्ट गेटवे भी आप कंसिडर कर सकते हैं. It usually means that the host is not configured, or it's 000 means that it's a default gateway as well. Also written as ::1 equivalent to the loopback address. जो loopback address होता है अपना IPv4 में 127.0.0.1, IPv6 के अंदर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं. This also means a loopback address on IPv6. Global unicast address range for use on the internet. वो IP जो 2000 से स्टार्ट होती है that is the global unicast address range. जो FC से स्टार्ट होती है वो local unicast address है. बेसिकली ये आउटगोइंग आप ग्लोबल समझ, ग्लोबल जो IP होती है ये उसके लिए है, ये लोकल इंटरनल जो IP है उसके लिए है, लिंक लोकल जो है जो आपकी खुद की IP वो असाइन कर रहा है उसके लिए है, और ये मल्टीकास्ट रेंज की IP है जो FF00 से स्टार्ट होती है. देखिए यहाँ पे ये लोग शो कर रहे हैं. देखिए FE से, ये शायद आप लोगों को याद रखना पड़े, FE से जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे वो ये है लिंक लोकल यूनिकास्ट, खुद ने अपने आप को असाइन की है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि ये अब इसमें कभी क्वेश्चन उठता है कि भाई इसका डिफॉल्ट गेटवे तो है, मतलब ये हुआ कि ये जो डिवाइस है कंप्यूटर ये राउटर से कनेक्टेड है, तो राउटर ने इसको DHCP की IP तो दे दी यहाँ पे 192.168.1.142 IP दे दी, तो इसने IPv6 क्यों नहीं दी? IPv6 वो अपने आप को क्यों असाइन कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है ना. भाई डिवाइस तो राउटर से कनेक्टेड है तो राउटर ने IPv4 दे दी, IPv6 क्यों नहीं दी? तो इसका आंसर ये है कि IPv6 राउटर के ऊपर DHCP उसकी इनेबल नहीं है. अगर राउटर के ऊपर IPv6 की भी DHCP इनेबल होती तो यहाँ पे राउटर ने भी उसको IP असाइन कर दी होती. ठीक है ना. इस चैप्टर में हमने TCP कवर किया, DoD मॉडल हमने कवर किया, कंपेयर्ड विद OSI मॉडल,
हमने सबनेट्स के बारे में लर्न किया, CIDR /16/824 टाइप्स सबनेट्स, DHCP एंड DNS के बारे में बात की, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेट IP एड्रेसेस की बात की, APIPA की बात की, नेट की बात की, ठीक है ना। These are essentials review questions, करने रिव्यू क्वेश्चंस जाने देना होगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट जो है चैप्टर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 है, वायरलेस डिवाइसेस एंड सोहो नेटवर्क। सो ये हम स्टार्ट करते हैं 1:30 को, 30 मिनट्स के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो वी विल हैव 2 and 3 hour and half to finish this. I'm not sure how long this chapter is, वो मैं ब्रेक में चेक करता हूँ, बट 1:30 PM हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 7 को एंड करता हूँ।